welcome to all for this Olympiad batch. Fine. So let's start. You all know me. Many centers I teach across like Chembur, Dadar, and then Andheri. I teach IOKM. So many of you are already aware. Still, I'll introduce myself. So I'm Pankaj Patel. Fine. I'm associated with PACE with more than 15 years, है ना, 11 years मतलब continuous हो गए, और उससे पहले भी association था. ठीक है? That's a little bit intro of mine. I'm an engineering by profession. I've worked in a professional field more than 6 years. That's my little bit intro. Okay, so now let's start with calculus. Let us come to the topic. तो आज का agenda है क्या? What do you want to study? First and foremost, why calculus? है ना? Instead of even before delving into this कि इसमें सीधा घुस जाएं सर, अंदर कूद जाएं कि कैलकुलस क्या है, मैं सीधे आपको फॉर्मूला लिखूं कि d/dx sin x cos x होता है, वो सब मैं सिखाऊंगा. मैं मना नहीं कर रहा, वो नहीं सिखाऊंगा. बट उससे पहले भी देयर इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस सो दैट यू ऑल आर अवेयर कि हाँ ये इसलिए हो रहा है. क्यों जिंदा हुआ? हाँ, देन व्हाट इज डेरिवेटिव एंड फाइंडिंग डेरिवेटिव्स. दिस इज द होल एजेंडा दैट वी वांट टू cover in today's lecture. Fine. And then we'll do a lot of sums. Okay, practice sums. Okay, so now first and foremost question, let's take this question straightforward. Why derivative? Now instead of like in calculus we find derivatives and we find integrals. तो ये सब क्या है सर, अलग अलग वर्ड्स आ गए हैं, इनका तो हमको मतलब ही नहीं पता. व्हाट इज डेरिवेटिव गाइस? है ना? क्या होता है डेरिवेटिव का लिटरल मीनिंग? क्या होता है गाइस? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? The rate at which something change. The The rate rate which of the rate at which some a quantity changes. rate of change of function of x with respect to x. तो ये बहुत भारी भारी डेफिनेशन आपने बोल दिए हैं. रेट, है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेशियो गाइस? या एनीवन? Sir, ratio is a comparison and rate is Ratio is comparison between two quantities, whereas rate is comparison between initial to final, if I'm correct. इनिशियल टू फाइनल? No? Yes. No? है? और शख्स नहीं क्या बोल दिया, सॉरी मेरा दिमाग नहीं कर रहा है, मैं मराठी अभी पढ़ा. सॉरी. No problem. Okay. Guys, see, if you define ratio, the thing comes, you might have studied in the class 8 standard, there's something, a chapter called comparing quantities. Okay? So, for comparing quantities, the thing is that you can only compare the quantities which are of same kind. Like you can compare apple with apple. You can't compare apple or with some other fruit. Yeah. Okay, you can only compare with car and car. You can't compare with other quantity. You can only compare speed with speed. You cannot compare speed with acceleration. Fine. So for comparing quantities, there are basically two methods. Fine. Let's say you all, there I take an example of any student. Let's say, take anyone, let's say ईशान. ईशान कोई पकड़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना ईशान? बहुत दिक्कत. हाँ, लेट्स से ईशान ने MT1 में मैथ्स में कितने, MT1 कितने मार्क्स का होता है गाइस हमारा? 120 होता है मैथ्स का. 20 per subject. 120 होता है. लेट्स से मैथ्स में 100 मिले और फिर उसको लेट्स से 120 मिले. So how can I compare these two marks? Sir, 5:6. 100:120 is proportionate to 5:6. इंट्यूशन क्या आ रहा है कि सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये MT जो है और इसमें दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ. हाँ. Yes, sir. दैट इज द फर्स्ट थिंग. एक और कोई बोल रहा था कि सर डिफरेंस छोड़ो, सीधा डिवाइड कर दो. तो आप कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर रहे हो? इधर यू आर यूजिंग प्लस और माइनस, बिकॉज़ माइनस इज अपोजिट ऑफ प्लस ओनली, और यू आर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन और यू कैन से division. So now which quantity would be suitable when? How can we decide this? If the amount of change is pretty small, you can go for plus minus. Yes, sir. Am I correct? Fine, na? But the amount is humongous, very gargantuous. है ना? Let's say आपका जितना wealth है और अंबानी का जितना wealth है. कितना wealth है रिवान? कितना होगा आपके पास टोटल? मेरे पास तो कुछ नहीं है. चलो रिवान बोल रहा है मेरे पास 0 है सर. सर
सर मेरा कॉलेज फंड में 3 लाख अभी जमा हुआ है सर, अब 3 लाख रखिए। ठीक है, तो प्रश्न का ले लेते हैं। 3 लाख है। अंबानी के पास कितना होगा भाई गाइस? करोड़। 1,000 नहीं, सर 200 140 करोड़ मे बी। बिलियन सर उसने 140 उसके बिलियन शादी है में ही 500 करोड़ रख दिए। सर Oh shit, 140 sorry, sorry. बिलियन है सर 2000 करोड़। सर 140 बिलियन है मैं 5,000 जानता हूँ 140 बिलियन 140 डॉलर की रुपीज? डॉलर है वो डॉलर 105 बिलियन डॉलर। डॉलर तो रहेगा 140 इंटू 80 ले लेता हूं मैं, और इसमें फिर 10 टू पावर 9 भी करोगे। अब आप बोलो सर बेटा, 90 इसमें मैं ये 3 इंटू 10 टू पावर 5 होता है लाख, इसमें मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो वो बेईमानी हो जाएगी बेटा, वो कंपैरिजन करेक्ट नहीं होगा, हाँ है ना? कैसे करोगे कंपेयर? फिर बोलो मेरे को, हाउ विल यू कंपेयर? रेशियो। रेशियो You will use ratio. Now, one thing is clear, in ratios, you divide two quantities A by B, both of them must be having the same unit. Is this funda clear? या Okay. Now, let us come to rate. Rate is somewhat similar to ratio. In this, we also use the division, but here, the quantities are not सेम same. Right? Numerator may represent a different quantity, denominator may represent a different quantity. Fine. So let's say rate is, again you can say that A by B, but here A would be a different quantity, B would be a different quantity. या आप लोगों ने एक मूवी देखी है क्या, कास्ट अवे? हाँ हाँ सर। जिनने नहीं देखी है, आई रिकमेंड कास्ट अवे, देखिएगा। ये मूवी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मूवी में मैंने जब ये मूवी देखी थी ना, तो मेरे को ये फील हुआ था कि हम बहुत सारी चीजें ना इंट्यूटिवली लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके पीछे के स्ट्रगल को ना हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस मूवी में है कि जब वो फायर जलाता है ना, लिटिल स्पॉइलर अलर्ट, है ना, जब वो फायर बर्न करता है तो उसको मतलब पूरा हाथ में खून वून आ जाता है, लिटरली ही स्ट्रगल्स लाइक एनीथिंग, है ना, फॉर 1 डे 2 डे इज नॉट एबल टू burn the fire or light up the fire. Fine. Ultimately, he was able to do it, but after a lot of hard work. Just like when a question comes to you, you simply start fighting with the question. Whatever arsenal you have, you start Googling it or chat GPTing it. So if you do that, you won't be able to grow your brain because that struggle is non-negotiable. So in that movie, that lesson I've been taught that if you want to develop your IQ, because you're in the IQ development stage, you have to struggle with the question. ठीक है? तो सिमिलरली इसमें मैं क्या बताया था, कास्ट अवे में आपका वो स्ट्रगल दिखाया। तो नाउ लेट अस रिलेट टू दिस। मैं क्या बोल रहा था, ए बाय बी। तो क्वेश्चन यहां से आया था कि आपको पता है बहुत सारी रेट इंट्यूटिवली यूज कर रहे हो, आपको अवेयर भी नहीं है। कैन एनीवन टेल मी कि सर हाँ ये रेट तो हम यूज करते हैं और इस पे बेस्ड हम डिसीजन भी लेते हैं, इवन यू टेक डेली डिसीजन बेस्ड ऑन दैट रेट। सर मैं बताऊं? सर स्पीड या सर बाजार में जो प्राइस रहता है The change in उसका actual rate। price में difference. ओके, लाइक पहला तो किसी ने बोला था स्पीड। पर सर एक क्वेश्चन है सर, मैं हाँ। अभी जस्ट ज्वाइन किया, हम लोग मतलब क्या डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं? गाइस होल मूवी फिर से रिपीट करने को बोल रहा है रेयांश। नहीं जा। नहीं नहीं, मैं तो- बस पूछ रहा हूँ कि हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं ना बस। देखो बेटा, दिस इज द एजेंडा। अच्छा ये 3 चीज हमने डिसाइड करी है कि हम ये 3 चीज सीखेंगे आज। अच्छा, तो मतलब हम लोग Derivative integrals, what is derivative, finding derivatives. ओके Now I was discussing this, I was just deconstructing this as much as कि derivative क्या है, क्यों है, whatever. ओके सर। This is what we're discussing now. First slide. Okay. यस सर। So I was asking what? There's a lot of intuitively things that you use intuitively, and those are rate you're not even aware of. Like for example, speed. Speed is a rate. What is the numerator in speed? distance Distance. Denominator. टाइम Time. Take tell me any decision that you make out of speed. क्योंकि अभी- आपके स्पीड लिमिट्स ड्राइव रहते नहीं हैं। करते हो ना, आपके कार और व्हीकल अलाउड नहीं होगा आपको ड्राइव, आफ्टर 18 प्लस होगा, बट स्टिल आप साइकिल तो चलाते होगे, हाँ दौड़ते तो होगे। हम्म। Yeah. So any decision that you make on the daily basis of the speed, anyone raise one student की सर हाँ ये decision मैंने लिया स्पीड के बेस पे। सर रोड क्रॉसिंग। Road crossing. So while road crossing, you will judge that the vehicle in front of you, will it hit you if you try to cross it? How far it is?
how fast it is moving. Am I correct? Yes. है ना? This is the Sir, decision writing that a test. So in the- sports, सर मैं बोलूं? So in Yeah. when सर you स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं तब सर लेट हो गया तो जल्दी जल्दी करते हैं। Okay. कौन सर बैटरी चार्ज? एक सर एक क्वेश्चन है। या कैलकुलस लीबनिज और न्यूटन दोनों ने मिलके बनाया था ना? या द क्रेडिट गोज टू बोथ। या ठीक है, तो फर्स्ट इज स्पीड, सेकंड आपने बोला कि सर स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, कितना टाइम बचा है? तो 5 मिनट में वो फटाफट नहा के तैयार होके ब्रश करके सब रेडी है। हाँ सर, जब हम लोग को ऐसा एक हफ्ते तक खत्म करने के लिए होमवर्क मिलता है तब भी ऐसा लाइक वी ट्राई टू सी लाइक आज इतना करेंगे, इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। या तो हम लोग 6 दिन रुक जाते रेट फिर देखते लास्ट रेट दिन देख करते। लेते हैं, बेसिकली रेट ऑफ मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपसे क्रिकेट ध्यान में से सुनो। मैच में रन जितना फास्ट बनाते हैं। हाँ, But- अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गाइस, सुनो ध्यान से। इफ ऑल द रेट आई एम यूजिंग इंटिटिवली, रेट आप इंटिटिवली यूज कर रहे हो, आप उसके बेस पे डिसीजन ले पा रहे हो। ओके, नाउ व्हाई टू मेक इट टफ? क्यों उसमें जबरदस्ती मैथ घुसेड़ रहे हो? सर हम ऑलरेडी, हमको रेट आता है, वी ऑलरेडी नो रेट, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू टेक डिसीजन एंड वी आर, मतलब उनके जो डिसीजन के रिपरकशंस हैं वो भी हमारे ऊपर आ रहे हैं। यदि हम पढ़ते नहीं तो फेल होते हैं जिस रेट से। So we are able to understand rate intuitively. Now the next question comes, why to make it tough? Anyone? क्यों Because there are many, सेट रहे हैं उसमें? there are many Yes. types of rate जो कि easy calculation से ना निकले। It's because rate doesn't always stay uniform. In real life, if you're driving a car, it won't go at one speed constantly. It will change speed because of the vehicles coming, traffic signals, things like that. Okay. Whenever we see a car going at, whenever the speedometer shows 60, it's not precisely 60. It may go at 61 or maybe 59 at times. So it is ever changing. Okay. So you are saying the rate is not constant. That's why we study. That is what I can ascertain from your all the two answers. Yes, so we can take we take an average of all rates that are calculated, maybe most likely, Okay. to get our answer. Okay. So आपने एक वो गीता का कोटेशन सुना है क्या? There is one religious text गीता का. The only thing which is constant is what? change. change. Aura. Change, not hora. हॉरा तो बेटा राजेश खन्ना, एक टाइम पे तुमने सुना भी नहीं होगा राजेश खन्ना का नाम। राजेश खन्ना 70s का सुपरस्टार हुआ करता था। हमारी जनरेशन में कौन आ गया? शाहरुख खान आ सर गया। आप, आपकी सर जनरेशन आप। में कौन सुपरस्टार है? Sir, Change is the only constant. हाँ, तो बेटा ऑरा भी चेंज होता है। okay. आज जो MT1 का टॉपर है कल वो टॉपर नहीं रहेगा। सर मैं तो आदित्य। MT1 का ऑफलाइन अरे सर ये जो प्रसून है ना, ये जो अभी बोल सर रहा मैं है, बहुत स्मार्ट हूँ सर। MT1 का सर ऑफलाइन नहीं, टॉपर ये हूँ सर। नहीं स्मार्ट है, ये Okay बस guys, don't digress with the topic, है ना? Okay, Little okay. bit Sorry, easy. sir. Okay, let us come back, है ना? हमारे पढ़ना भी है। हाँ, okay. So one thing is clear. आपने जो एक आंसर दिया कि सर life is continuously changing, fine. तो we need to understand rate quantitatively. सिर्फ qualitatively काम नहीं चलेगा। और एक और प्रिसाइज आंसर हो सकता है, लेट्स से टुमारो यू वर्क इन सम फील्ड, है ना? लेट्स से आप इंजीनियर बन गए, तो लेट्स से आपको रॉकेट लॉन्च करना है, तो तब आपका इंट्यूशन थोड़ा काम करेगा, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वुड बी करोड्स ऑफ रुपीज विच इज एट द स्टेक, है ना? आपकी एक गलती से करोड़ों रुपए यहां से वहां हो जाएंगे, या करोड़ों डॉलर, बिलियन डॉलर्स यहां से वहां हो जाएंगे। तो बहुत महंगी गलती पड़ेगी यदि आपने सही तरीके से सिस्टम को डिजाइन नहीं किया, तो उस टाइम पे आपको ये रेट काम आएगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, व्हाई वी नीड टू स्टडी रेट, व्हाट, क्वांटिटेटिवली एंड डिग डीपर। ओके, चलो, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट वाज द नेक्स्ट पार्ट? दिस फर्स्ट पार्ट इज डन गाइस, है ना? दिस फर्स्ट पार्ट इज डन। वाई कैलकुलस में रेट क्यों पढ़ रहे हैं? इंटीग्रल्स का व्हेन वी स्टार्ट इंटीग्रेशन ना, उस टाइम पे मैं वाई एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिर्फ डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूं, तो नाउ आई एक्सप्लेन डेरिवेटिव की वाई डेरिवेटिव, है ना? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज डेरिवेटिव? तो ये तो आप इसी में कवर हो गया है। व्हाट इज डेरिवेटिव? Rate of Rate of change. change. रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। है ना? अब यहां पे बहुत से बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज टाइम होगा। विल इट ऑलवेज बी टाइम?
No, sir. It No, will be sir. the It will quantity. be with respect to what we No, are sir. measuring. सर एक्चुअली सर मतलब जब अगर हम डिस्टेंस physics- के डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें डिस्टेंस डिनोमीटर लेना है। सर हम लोग अगर फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, लेकिन एक्चुअली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम, फाइन। बट यूजुअली आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में कौन सा वेरिएबल लोगे, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। और डिनोमिनेटर में Dependent. डिपेंडेंट। तो यहां पर मैंने दो वर्ड यूज करे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन। इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, लेट्स से एक मैथ्स का प्रैक्टिकल बताता हूं, प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होता है। लेट्स से एक डाइस है और एक आपका लेट्स से कॉइन है, ठीक है। कॉइन को फेंकने पे हेड या टॉस आएगा और डाइस को रोल करने पे 1 to 6 के बीच में कुछ आएगा। तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? हाँ। नो सर। No, sir. नहीं। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन है भाई। नहीं है। तो if I म्यूचुअली represent, एक्सक्लूसिव। if I represent the result of one, this dice with a variable x, and this of coin with variable y, x won't be related to with y. However, let's take the case of speed. आप कितना फास्ट मूव हो रहे हो, तो आप कितने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करोगे, ये डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यस हाँ। सर, ये डिपेंड करेगा ना। तो देयर इज अ मतलब व्हाट डिपेंडेंसी ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। सो लेट्स से वेरिएबल y is dependent on variable x. इसको कैसे लिखेंगे गाइस? हाउ डू वी राइट इट? y is equal to f of x। y is equal to f of As x. equal to the function of x. y is a function of x। और सिंपल तरीके से इसको क्या बोल सकते हो कि y x पे किसी तरीके से डिपेंड करता है। वो तरीके हजारों हैं, इनफाइनाइट्स हैं, देयर आर इनफाइनाइट वेज, वी डोंट नो इट, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ f of x। It could be a quadratic, it could be a linear, it could be a biquadratic, okay? It could be a trigonometric, it could be a logarithmic। जो जितने फंक्शन बना सकते हो सब फंक्शन इस पॉसिबल में हो सकता है। ओके फाइन। सो नाउ लेट अस मूव टू द रेट ऑफ चेंज। क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? dy by dy by dy dx. by dx। या d by डी बाय dx। dx। और आप फिर डी क्यों लिया? सॉरी डी ही क्यों लिया? d very small change हाँ। next। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। B I guess नहीं with सर, मतलब delta कुछ as well. और भी तो ले Delta. सकते हैं, पी वाई बाई पी एक्स। Delta. Delta. अच्छा, Delta is डी बाय डी एक्स ना, डेल्टा से आया बेटा वो। डेल्टा मीन्स डिफरेंस, ग्रीक का लेटर है ना। It has वहां से change in. सर ये Change सब in. डेरिवेटिव का पार्ट हुआ ना, हाँ तो फिर रेट ऑफ चेंज dy by dx हो गया ना। हाँ, ये ए जो है, ए की जगह मैंने क्या रख दिया? व्हाट आई पुट इन द प्लेस ऑफ ए? डी बाय। dy अच्छा ए की जगह क्या रख दिया? dx। तो डी बाय डी एक्स रेट ऑफ चेंज। सर डी क्या है? डी इज चेंज इन वेरिएबल वाई। डी एक्स तो d कांस्टेंट हो गया ना इसमें, हाँ, d कांस्टेंट हो गया ना इसमें। डी कांस्टेंट नहीं बेटा, ये डी वाई टोटल एक साथ बोला जाता है। जैसे फॉर ओ एग्जांपल अच्छा अच्छा, डी मीन्स चेंज, डी वाई मीन्स चेंज dy इन। means change in जैसे y कि and dx जैसे कि means फिजिक्स change में in हम लोग x. डेल्टा, जैसे कि हम लोग फिजिक्स में अगर चेंज इन टेम्परेचर लिखते हैं तो डेल्टा टी यस लिखते यस, हैं। इट इज दैट डेल्टा ओनली। तो इसमें देखो, यहाँ पे एक और आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूं मैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा Delta can represent सर बहुत छोटा डेल्टा है चेंज value। Sir, D होता is है, very बट ये small. बहुत स्मॉल चेंज है। डेल्टा वाई बाई सर डेल्टा एक इनफिनिटेसिमल बहुत है। बड़े के लिए हो सकता हाँ है। हाँ, dy larger dx will be infinitesimal scale ना। dx is just a way of saying delta x tends to 0. So it's Okay. almost 0. सेम It ही is है 0 सर, delta. सेम ही है, लेकिन जो dx में जो चेंज है ना वो बहुत कम है, बहुत कम है, वेरी क्लोज टू जीरो। ओके, सो आपने दो आंसर दिए कि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये बहुत स्मॉल है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। इनफिनिटेसिमल। इंस्टेंटेनियस। और इसको क्या बोलते हैं रेड वाले को गाइस? एवरेज। 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 Average. दिस इज एवरेज। ओके, नाउ लेट अस गेट डीप इनटू दिस रेट ऑफ चेंज। इस पे अब हम पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं इसको क्या है। ओके,
नाउ लेट्स से यू हैव दिस वाटर बॉटल, है ना, इसमें ये आपका क्या भर रहा है, पानी यहां से टैप से फिल हो रहा है, ठीक है, और ये ग्राफ दे रखा है, y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया गया है, वॉल्यूम 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 बाय टाइम ग्राफ वॉल्यूम, और x एक्सिस पे टाइम टाइम। अब यहां पे आपकी ग्राफ्स को लिख होंगी, व्हाट इज बीन रिक्वायर्ड कि आपको बेसिक ग्राफ आता है। इज एनी स्टूडेंट इन माय क्लास जिसको ग्राफ बिल्कुल भी नहीं आता है, पॉइंट प्लॉटिंग ग्राफ? सर मुझे ग्राफ बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मैंने ग्राफ के सेकंड वाले टेस्ट में फुल आया था, लेकिन पहले वाले टेस्ट में मुझे आज तक मैथ्स में सबसे कम आया है, तो चलो, मतलब ऐसा इस वाले स्लाइड पे आओ फिर से, मैंने y बोला था ना, तो अब मेरे को ये आंसर बताओ कि यदि मैंने आपको बोला लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट्स से थ्राइस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं x का वैल्यू आपको दे रहा हूं, लेट्स से x इज इक्वल्स टू 1, तो y बताओ कितना होगा, 3 x इज इक्वल टू 2, 12 so what is the value of delta y upon delta x? 1/9 1 by 9, नहीं सॉरी Nine. 9 it's 12 minus 3 divided by 2 minus 1, which is 9. अब ध्यान से सुनो, मैंने एक क्वेश्चन इस क्यों इंट्रोड्यूस करी आपको, यदि मैं आपको एल्जेब्रिकली सिर्फ ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है क्या कि ये x जो है जैसे जैसे x चेंज होगा y कैसे चेंज होगा, यदि आपको ग्राफ नहीं पता है तो? यस सर, हाँ पता चला। नहीं पता चलेगा? हाँ सर। हाँ, लेट्स से मैं इसमें चेंज कर दूं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर इंट्यूटिवली आप उतना बता नहीं पाओगे। तो बेसिकली देखो, ग्राफ कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है बताओ गाइस, विच प्रॉब्लम ग्राफ इज सॉल्विंग? सर रेट ऑफ चेंज हम अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब पिक्टोरियल विजुअलाइज कर सकते हैं उस चीज को। वेरी गुड, इंट्यूशन, क्योंकि आप विजुअलाइजेशन देख के अच्छा बता सकते हो कि सर हाँ ऐसा जा रहा है तो इंक्रीजिंग है, ऐसा जा रहा है तो डिक्रीजिंग है, बिल्कुल सीधा जा रहा है तो कांस्टेंट है। हाँ आर यू अंडरस्टैंडिंग Yes, व्हाट sir. प्रॉब्लम Yes, ग्राफ sir. सॉल्व? देख के समझ में हो आता जाते है। हैं। इतना क्लियर? दैट्स व्हाई उस क्वेश्चन में ग्राफ लेके आया हूं मैं, क्योंकि ग्राफ नहीं आएगा ना तो फिर आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे डेटा को, अदरवाइज तो मैं सीधा इक्वेशन लिख के भी कर सकता था, बट दैट्स व्हाई आई ब्रॉट व्हाट कि भाई हाँ यहां पे ये फिनोमिनन है। व्हाट इज द फिनोमिनन? दैट यू आर pouring liquid into a water bottle and this is the graph. Now you need to find what does the question says? Let's start with the finding the rate of change of the water bottle. आपको कुछ डेटा गिवन है, देखो डॉट 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 करके दिख रहा है, आपको कुछ डेटा गिवन है गाइस, दिख रहा है कि हाँ यार ये डॉट 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 करके डेटा गिवन है। हाँ हाँ, now tell me what would be the answer for this? If you know the graph skill की सर हाँ हम विजुअलाइज कर लेते हैं डेटा को, anyone? 40 मिलीलीटर या जो भी है पर सेकंड। हाँ, let's say this is second and this is milliliter. 50 हाँ तो 40 50 milliliter per 50 second. milliliter per second। 50 milliliter per second. 50 milliliter. तो कैसे चेक करोगे? आप देखो x यहाँ पे कितना है, 0 0, यहाँ पे कितना है 10 60 milliliter. तो डेल्टा x कितना हो गया 10 10 माइनस 0 विच इज 10 10। यहाँ पे y कितना है 0 0 15। यहाँ पे y कितना है इस वाले पे 500. 500। तो डेल्टा y कितना हो गया 500 500. हमको रेट निकालना है, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा X. 500 by 10. 50. 50 milliliter by 10. 50 sir. स्लोप हो गया ना बेसिकली। मिलीलीटर पर सेकंड। तो सर बेसिकली फिलिंग स्लोप ही रेट हो गया का ना। नहीं है, हाँ इसको भी बोलेंगे फिलिंग रेट। हाँ, ये इस तो रेट स्लोप ही हो से गया।
इस वाटर में बॉटल पॉर हो रहा है। तो मतलब ये स्लोप है इसका। हाँ, ओके। नाउ नेक्स्ट आपने खुद बोला, मैंने तो स्लोप इंट्रोड्यूस किया नहीं था, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बोला कि सर ये क्या है इसका स्लोप है स्लोप। तो ये इक्वेशन दे दी अब मैंने आपको और पूछा बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस 50। सो नाउ यू हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन इसका स्लोप क्या होगा। नाउ व्हाट इज स्लोप, ये एक नया टर्म आ गया है स्लोप। रेज योर हैंड, व्हाट इज स्लोप? Sir, the incline of the graph. Okay, let's say Abhi Deshpande. Yeah, what's The slope is the rate of the change in the graph. rate in the change of the graph? Yeah, correct. Any other more colloquial Sir. way? सर मैं बताऊं? Yeah, Anudeep. Sir, slope is delta y by delta x or tan theta. Okay, so change in output upon change in input. That is why you're saying change in output divide by change in input. फिर ये नहीं समझा ये एनालॉजी। है ना? Sir, it is What is output over here? Sir, output is Velocity. the Y. Oh, V, this quantity is output. What is input? Sir, time. Or the x-axis. Okay, so now you were saying this tan is theta. tan theta अच्छा नहीं 50. 50. 50. Okay, how did we arrive at the figure 50? 500 by 10. Delta y by delta x. Okay, so you will write what? D by dt of V of V of t. is 50. Hmm. Okay, na? Sir, In मतलब other समझा नहीं words, सर। you can bring this t over there and then take the difference. Okay, you'll get 50 only. Sir, output input नहीं समझा क्या है? आउटपुट इनपुट मतलब बेटा वही वेरिएबल बताया था, ये वाला डिस्कशन ध्यान करो, डिस्कस दिस वाला। व्हाट वाज दिस ऑल अबाउट? दिस डिस्कशन। एक्स क्या है यहाँ पे बोलो? Time. y का function Y is a भी हो सकता function है। एंड वाई in क्या which है? y is dependent of x in many. यस, तो आप इनको अलग अलग नाम से बोल सकते हो। जैसे आपके घर पे एक नाम है, आपका स्कूल में एक नाम है, और फ्रेंड से मजाक से आपके फ्रेंड कुछ और बुलाते हो। सिमिलरली यहाँ पे इनके वेरिएबल के अलग अलग नाम है। वाई को आप आउटपुट बोल सकते हो, वाई को आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली एक्स को इनपुट बोल सकते हो, एक्स को और क्या क्या बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो। नाम अलग अलग है बट कंसेप्ट सेम है। Okay, Okay? sir. नाउ अंडरस्टूड? Yes, sir. है ना? तो रेट ही है। ओके, नाउ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर आफ्टर टी सेकेंड, हाउ मच वाटर इज एडेड टू द बॉटल ईच सेकेंड? क्या आंसर आया? सर 50 सर 50 में 50 ml unit per second। 50 यूनिट पर सेकंड, तो पर सेकंड तो दिया है ना, 50 है। इसका आंसर एनीवन रेज योर हैंड। सम ईशान कपूर। So अभी like you put it instantly, can I like take a second to calculate it? फरीद। सर मैं बोलूं? फरीद। Sir, I had a doubt. What doubt you have? Sir, I still don't get what output and input is, sir. Output and input. Tell me any polynomial function that you know. पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ लिया बेटा हमने 9th में। हाँ सर। टेल मी एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। X square plus y is 50 x square plus y is 50 plus y yes is equal to 50। अभी जो x स्क्वायर के टर्म है उनको एक साइड पे रखो,
सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 50 minus 50 x square. माइनस एक्स स्क्वायर। अब x क्या है? एक वेरिएबल है। y भी क्या है? एक वेरिएबल है। अब x का वैल्यू आप चूज कर सकते हो, आपको जो रियल नंबर नया ले लो, उसको यहां सब्स्टिट्यूट करो। उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको y कैलकुलेट मिलेगा, तो x इनपुट हो जाएगा, y आउटपुट हो जाएगा। तो सर हम किसी को भी मतलब लाइक y को भी अगर मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस y ले तो भी हम लिख सकते हैं, कैसे y लिखेंगे? को एक्स स्क्वायर इज इनपुट इक्वल टू 50 माइनस y। y तो तो आप फिर हम यहाँ y को इनपुट बोलोगे तो x हाँ क्या बन जाएगा? ओके सर हाँ तो आउटपुट। आउटपुट बन आउटपुट। ओके सर d/dt क्या है? Sir, I got the answer for that सर वो देख question. dy by सर एक dx सेकंड होता आप पीछे जा सकते हो, एक सेकंड। सर रेट ऑफ चेंज 2 होगा इस क्वेश्चन का। किसमें होगा थैंक यू इसका रेट ऑफ सर। चेंज? सर जो आपने वो वाला क्वेश्चन लिखा सर था उस वाले क्वेश्चन में पिछले वाले। सर वो कि क्वेश्चन आंसर वन माइनस 2। होगा इसका। आप स्लोप कैसे निकालते हो इसी पॉइंट पे? इसका क्या आएगा? पॉइंट का ग्राफ क्या होगा? वो क्या होगा? 10,500 ना? हाँ 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 सर क्या यस होगा? सर 0,0 तो जीरो क्या आएगा? वाई 500 बाय माइनस डी 0, 10 माइनस 0, यही तो आएगा। 50 तो आएगा। यस सर उस सर इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। अच्छा लेंस निकलेगा, लेंस गाइस डन, आगे बढ़े। सर किसी आवाज आ रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जब भी ये लीनियर टाइप का होता है, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल जैसे डिग्री 1 होता है ना, तो आप उसको हटा के उसका जो कोफिशिएंट है वो सीधा सीधा रेट बोल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में बताओ मेरे को, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन? -2 -2 है ना? चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। फाइन। जिनको स्लोप आता है, क्लास 9th वाले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 8th वाले में भी ना पढ़े हो। यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? 0,8 सर 0.8 0.8 0,8 4,0 0,0 तो आप निकाल सकते हो। किसमें चीज निकालना है आपको? लेट्स से y में निकालो। तो y यहाँ है ये और यहाँ पर है ये, तो क्या आएगा? 0 minus 8 0 minus 8 -8 डिवाइडेड बाय 4 minus 0 -0 4 माइनस 0 0। तो -2 आएगा सर। If you Minus calculate 2. this quantity, सर you'll get 8 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 8 माइनस नहीं होगा -8 by 4, which is -2. -2 You guys answered. सर एक बार लिखने दो ना। Right? स्लाइड शेयर होंगी ना आपको? हो जाएगी। सर ओके सर ये तो ऐसे ही दिख रहा है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में, तो m इक्वल टू -2 होगा। हाँ ठीक है। पर लेकिन रेट ऑफ चेंज नेगेटिव कैसे हो सकता है? रेट ऑफ चेंज नेगेटिव कैसे हो सकता है? मतलब कोई क्वांटिटी डिक्रीज नहीं हो सकती? सॉरी डिक्रीज है। सर लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए है ना, आप 1 लाख रुपए ऐसे ही पड़े रहने दो बैंक में, क्या होगा? इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू खा जाएगा। कितने परसेंट से खा जाएगा? कितने परसेंट से खा जाएगा 1 लाख की वैल्यू? 8% है। तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लाख माइनस 30,000 which is equal to 270,000 272 हाँ 8%, प्रशुन 8%। Who's this guy सार्थक? 1% की 8%। 8% बेटा, ओ मैं 8%, इतना समय के लिए 1% सुन रहा था, सॉरी। 8%, 8। So let's say 1 lakh, 8% of 1 lakh is 8,000. So 92,000. So decrease हुआ ना? सर ना? मेरे को एक डाउट था, मेरे को आंसर आया समझ गया, लेकिन जो ऊपर लिखा है सी ऑफ क्वेश्चन में सी ऑफ टी इज इक्वल टू 8 माइनस 2 टी, उसका क्या रिलेशन है? मेरे को नहीं समझा। ये इक्वेशन है और ये इस इक्वेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ओके अच्छा, उसको प्लॉट किया। हाँ जी। ओके तो बहुत से बच्चों ने ग्राफ से ही निकाल लिया, उन्होंने बोला इक्वेशन को छोड़ो, क्या करो? पॉइंट निकालो, स्लोप का फॉर्मूला लगा दो जिनको पता है। वो y इक्वल्स mx प्लस c से भी होगा। जिनने बोला कि नहीं सर ग्राफ जाए भाड़ में, मेरे को इक्वेशन पता है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, सीधा m से कंपेयर कर दूंगा।
और दूसरा जो मैंने अभी भी सिखाया, सर क्या इक्वेशन से कैसे करेंगे, एक बार दिखा सकते इससे हैं? इक्वेशन से कैसे इक्वेशन सॉल्व से इक्वेशन हाँ इक्वेशन वही से मेरा ना डाउट आपको है। उसमें स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, वो आएंगे अभी, डोंट वरी। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी 9th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है उनको आ जाएगा। आगे हम इसमें कवर करेंगे, है ना, अदरवाइज विल डाइवर्स फ्रॉम द टॉपिक। तो वो अभी Okay. द टाइम मीन साइड में रखो, विल कवर दैट। Sir, I have a question. एनी डाउट? No, Yes, sir. sir. I have a question. या So, it might be a bit off, but if there is a possibility that the rate of change is not constant, sometime it goes up, sometime it goes down. If there's a possibility of that, will the formula be applicable, or will we have to take the point from the first point to the final point? या that's where we are coming. This is linear. Yeah. Here na, so here the rate of change is constant, whether it's negative, like in this case minus, in this case it is positive 50, है ना, still constant. तो जब Visually you quadratic can see that parabola also the आएगा rate तब is वो not change हो changing, जाएगा। but sometime the visually or the equation may be different. Let's say quadratic, cubic. So in that case, how will you find the rate? That is what where we're going. So we're starting from the linear part. Okay? That is where we are proceeding. All right. Good. Take it. Thank you. We're following. Now, guys, raise your hand, anyone. I'll give the opportunity to anyone. Sir. Sir. Yeah. anyone. सर हाँ सर, तो वो exactly 6 पे है ना? You're trying to find out visually or you're trying to find out by equation? Visually. Okay. तो वो जो लाइन जा रहा है वो exactly 6 पर रुक रहा है ना? यहाँ पे ऐसा? हाँ, I don't think so. तो वो approximately 6.5 पे है? 7 नहीं 6.5 पे है मेरे ख्याल से, 7 तक नहीं जाएगा। सो अगर हम 6 पे है 6 पे 6.5 है कंसिडर करेंगे, सो 2.5 कंसीडर कर लो, 6 पे कर लो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, All right, sir. सो वील कंसिडर 2 बाय 0 से 5, सो 2 बाय 5 which is 0.4। 0.4? हाँ, 2 बाय 5 6.5 क्या कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 5, 6 6 इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0.4 0,4 2 बाय 5 2/5 आएगा, सही बोल रहा है। 2 by 5. Yeah, 2 by 5 is correct. 2 by 5. 0.4। 0.4. हाँ सर, Fine. So that is why I was saying that it is not at 6. Somewhat were saying ना कि सर 6 ही है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा, 0.5। 1/2 आएगा, 1/2। तो इसका मतलब गलत है, 6.5 यहाँ पे पे ये है। नहीं है। तो मैं वही बोल रहा था ना, 6.5 लेते हैं। हाँ, so 6.5 आपको फिर अज्यूम करना पड़ेगा, करेक्ट ना? वही है कि हाँ यहाँ पे आएगा बेसिकली, तो 0.5 आएगा। ये वाला। हाँ वही। स्केल से कर सर वो 7 है, वो तो 7 हुआ ना सर। हाँ तो 7 हुआ। हो गया। सो बेटर इसलिए बेटा ग्राफ से मत निकालो। ओके ओके। प्रॉब्लम है ना, क्योंकि प्रॉपर क्या किया, कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं है। हाँ कैलिब्रेशन इज नॉट प्रॉपर, यू आर नॉट एबल टू गेज की विजुअली कहाँ कहाँ क्या दिख रहा है। सो बेटर टू गो बाय इक्वेशन। ओके, इक्वेशन में क्या होगा? इक्वेशन से 1/2 0.5 आएगा। हाँ, जो भी आपका वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है दैट वुड बी दी स्लोप। तो स्लोप क्या आ जाएगा बोलो? व्हाट वुड बी रेट ऑफ चेंज इन दिस केस? 1/2। 1/2। अभी तक ध्यान रखना, वो ईशान ने जो क्वेश्चन पूछा है क्या कि सर व्हाट इफ द पॉलिनोमियल चेंजेस इन ऑल दीज 3 केसेस, व्हाट इज द डिग्री पॉलिनोमियल? 1 रहता है। नहीं, हाँ 1 Degree is 1, linear. So in the case of linear polynomial, you are directly able to get the rate. सीधा रेट मिल जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है। Visually भी प्लॉट नहीं करना। क्या है आंसर? Whatever is the coefficient of that linear part, वो सीधा आंसर है। That is the rate. सर अगर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में या सर जैसे सर प्रीवियस मुझे स्लोप बेटा एक एक करके सर ना, मुझे तो स्लोप ढंग से समझ तो में नहीं कैसे होगा? यस रियाजा बोलो। सर स्लोप मुझे मतलब ढंग से समझ में नहीं। क्या बेटा? सर मुझे स्लोप
रेट आपका ऑफ आवाज कट रहा है एक तो। चेंज वो मुझे माइक थोड़ा अपने पास रखो। सार्थक, सर बहुत से बच्चे जो बोल सर नहीं आई रहे थिंक व्हाई वो आर दे बोलना एट द लीड चाहता है कि पोजीशन। हाँ सर सर आई स्लोप थिंक रियांश नहीं बोलना चाहता है कि उसको स्लोप नहीं समझ आ रहा है। Okay, you're not understanding slope. You're saying like this, Riyansh? हाँ बोला Okay, so now let's see. Intuitively develop करते हैं. Let's say you're standing over here. ठीक है? Now, let's take multiple stairs. One from here, one from here, and one from here. Okay? हाँ सर Tell me which point is at the higher slope with respect to you, your present position. ए तो आता तो है slope. अच्छा हाँ तो फिर ये रेट ऑफ चेंज फंक्शन इसके हिसाब से स्लोप क्या हो? आप क्या बोला आपने? आपने ये देखा कि यार लेट्स से मैं यहाँ पे 1 यूनिट चला, है ना? लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर. लेट्स से मैं यहां से यहां आ गया, तो ये वाला चेंज जो है एक्स में, ये तो सबके लिए कांस्टेंट है. हाँ ए बी सी तीनों के लिए 1 1 1 रहेगा. हाँ करेक्ट है. बट जो वाई में चेंज होगा वो क्या होगा? देखो जरा, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, है ना? तो क्या होगा? आप क्या चेंज लोगे वाई में? यहां से ये वाला, मतलब प्रॉपर ग्राफ नहीं बनाया, सॉरी फॉर दैट. तो आपको क्या करना है? कितना राइज होता है ओवर रन. राइज ओवर रन इज द स्लोप, जो आपको इंट्यूटिवली ऑलरेडी आता था, आपने आंसर किया है. बिकॉज इफ यू हैव नॉट नोन दैट देन यू वुड नॉट बी एबल टू आंसर, बट यू नो इंट्यूटिवली. We want to put it into the quantitative form. So what is it is? It is rise over run. Rise over run. राइज ओवर रन. अच्छा है ना? How much you rise compared to how much you run. हाँ So if अच्छा it is more, you can find A will have, यदि आप point A, point B, point C, you'll find that point A has more value than point B and point C. Okay? अच्छा ठीक. ओके, सो नाउ अभी तक सिर्फ हमने क्या सीखा है? रेट क्या होता है. और हमने रेट में अभी क्या क्या किया है? सिर्फ वॉल्यूम, पहले केस में हमने वॉल्यूम फिट किया है और नीचे टाइम फिट किया है. ठीक है. फिर हम इन जनरल आ गए. फाइन. हमने यहां पे y ऑफ t लिया है, वहां पे c ऑफ t लिया है. यहां पे मैंने आपको बताया नहीं व्हाट डज y ऑफ t रिप्रेजेंट. दैट आई एक्सप्लेन्ड यू. y ऑफ t रिप्रेजेंट टाइम और समथिंग एल्स. यहां पे मैंने क्वांटिटी का कोई नाम नहीं लिखा है. तो यहां तक अभी फिजिक्स हुआ ही नहीं है, यहां पे सिर्फ प्योर मैथ चल रहा है. इट कुड रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी, इट कुड रिप्रेजेंट हाइट, फाइन, इट कुड रिप्रेजेंट एनीथिंग. Yes. हाँ. नेक्स्ट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर फंक्शन इज इट्स स्लोप. यही हमने सीखा है ना? कि किसी, यही बोला था ना मैंने, कि किसी भी लीनियर का मतलब क्या? व्हाट डज द लीनियर मींस? डिग्री इज डिग्री 1. डिग्री 1. टी का पावर कितना है? T का पावर 1 है. तो ये क्वेश्चन वो ईशान ने पूछा था कि सर व्हाट इफ द फंक्शन इज नॉट लीनियर. वो हम अभी आगे आ रहे हैं. तो अभी यही सीख गए कि गाइस कि लीनियर फंक्शन के केस में व्हाटएवर इज द कोफिशिएंट वो ही स्लोप होगा और वही रेट होगा. आई होप दिस लर्निंग इज क्लियर. Yes, sir. Okay, let's move to the next part. Now, you find that the rate of the channel linear function even when a function is non-linear. Yeah. एक बार बैक पेज जा सकते हैं जैसे. Okay, sir. Done? Yes. Okay. Now let us come to that question. What is the question? सर ये That क्या है? what if the rate is changing? What if the rate is changing? For example, here you will find that at this point rate is, इसका slope different है. At this point slope would be different. At this point slope would be different.
at this point slope would be different. यही सीखा ना हमने कि किसी भी फंक्शन का लकीली हमको क्या हुआ था, इस केस में फंक्शन एक लाइन ही मिल गया था. But that is what the question was. Rishan was asking कि sir what if the function is different, like ऐसा कुछ है जिसका हाँ, यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, समथिंग लाइक रैंडम. सर मुझे एक डाउट था. सॉरी सर किसी एक पॉइंट का स्लोप कैसे हो सकता है? किसी एक लाइन का स्लोप होएगा ना, किसी एक पॉइंट का स्लोप कैसे हो सकता है? उससे तो हाँ. कितनी भी लाइन पास कर सकते हैं. तो वेरी गुड. तो नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन कि सर एक पॉइंट का स्लोप कैसे हो सकता है. फाइन. सो लेट्स से ये मैंने एक ऐसा एक ग्राफ ले लिया. इतना क्लियर? सर स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है ना, पॉइंट के टैंजेंट का स्लोप होता है ना, पॉइंट का थोड़ी स्लोप होता है. हाँ. तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ऐसा सीकेंट बना दिया. सो क्या हो जाएगा सीकेंट? अ लाइन विच कट्स a given curve at two distinct point is called as a secant. So this is one point जहां पे क्रॉसिंग हो रहा है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट. अब इस सीकेंट का स्लोप निकाल सकता हूं मैं? स्लोप निकाल सकता हूं. फाइन. अब क्या करो, आप इस पॉइंट को यू ब्रिंग क्लोजर टू दिस पॉइंट. तो क्या हो, सच दैट ये वाला लाइन एक टेंजेंट बन जाए, ऐसा टेंजेंट बन जाए इस पे ऐसा. So now that slope of that tangent, that is the meaning of this. अब जो पूछ रहे थे ना बच्चे की सर पॉइंट का स्लोप कैसे हो सकता है, सर तो पॉइंट का स्लोप नहीं है, किसका स्लोप है वो? टेंजेंट टेंजेंट का स्लोप है. अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि उस पॉइंट पर जो रेट है वो हम बता हाँ, पर वो पॉइंट पे एक रेट चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग रेट रहेगा. क्योंकि हर पॉइंट पे अलग रेट रहेगा. अलग रेट. ये हर बात एक्सटेंट आपने पे अलग रेट हो जाएगा. दिस इज द होल, बिल्कुल मतलब क्या बोले, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है. क्या है आर्ग्यूमेंट? कि सर हर पॉइंट पे रेट अलग है, तो जितने हम उस पॉइंट के क्लोज आ जाएं उतना अच्छा, क्योंकि उतना बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा. आप सपोज करो इस पॉइंट का स्लोप निकालना चाहते हो, पॉइंट पे टेंजेंट जो भी सीकेंट बना के, फाइन. तो आप आसपास के पॉइंट ही लो तो आपको बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा कंपेयर टू सीकेंट ले रहे हो. वही डिफरेंशिएशन होता है ना. हाँ. तो दैट इज, दिस रेड वाला इज इंस्टेंटेनियस, येलो वाला इज एवरेज. अच्छा सर एक डाउट था. हाँ सर तो स्लोप ऑफ टैंजेंट हो गया इंस्टेंटेनियस और स्लोप ऑफ सीकेंट हो गया एवरेज. एवरेज करेक्ट. हाँ सर. हाँ बस करेक्ट. सर तो ये टैंजेंट और सीकेंट दोनों का निकलता है क्या कैलकुलस में? कैलकुलस में हम क्या करते हैं? Basically, what we have made is the distance between those 2 points is negligible, like near zero. And why? Both are infinitesimally close. Approximate, like to get approximate value, like a good approximate. और accurate भी मिल जाए. Main point is that the slope is changing constantly. हाँ. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके लिए एक एनालॉजी ड्रॉ करता हूं, है ना? जो ये पूछ रहे हैं ना कि सर क्यों, मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करता हूं. लेट अस ड्रॉ एनालॉजी. एनालॉजी ये है गाइस कि लेट्स से मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये फिर ये फिर ये, लेट्स से 2 3 4 2, लेट्स से 6 2. 6 7 रखो ना. मैं पूछूं बताओ एरिया कितना है? 6 8 12. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये पॉइंट्स जो है इंडिविजुअल पॉइंट्स पे निकाल रहे हो. बट मेरे को एक ऐसा फॉर्मूला दे दो सो दैट ये लेंथ और ब्रेथ कुछ भी हो, मैं एरिया निकाल पाऊं. तो सेम थिंग हम यहां कर रहे हैं बेटा. हम क्या कर रहे हैं, जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हम यहां पे जो पॉइंट अज्यूम करते हैं वो हम 2 4 या 6 अज्यूम नहीं करते हैं. हम क्या अज्यूम करते हैं?
L into B, वो L into फॉर्मूला को हाँ क्या अज्यूम करते हैं? X X सिमिलरली इस x के करस्पॉन्ड हमको क्या मिलता है? Y निकालोगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हो जाएगा बड़ा वाला चेंज, सीकेंट वाला। हाँ और बट जब हमें अब छोटा 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 करते जाओगे डेल्टा y को, तो आपको क्या मिलेगा? बहुत स्मॉल। tends to zero करेक्ट है, करेक्ट है। और डिवीजन पे वो बहुत बड़ा आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 0.00002, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। सर बट 0.0005, ये भी स्मॉल क्वांटिटी है, बट दोनों का जो डिवीजन है वो एक लार्ज क्वांटिटी है कंपेयर टू दीज टू। यस ये चीज ध्यान रखना, करेक्ट है। It is equal to 2/5. सर 2/5 आएगा। होगा, इट वुड बी ह्यूज, इट मे बी। सर या मैंने मेरे जो पेस का फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैंने उसको पूछा इन व्हाट वे कैन वी कंसिडर अ नंबर दैट टेंड्स टू जीरो, एंड सर एंड माय फिजिक्स सर प्रिंस सर टोल्ड मी दैट इट वेरीज फ्रॉम परसेंट टू परसेंट। तो अगर कैलकुलस में देखेंगे वी नीड डेल्टा एक्स टू टेंड टू जीरो ना। डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो। इनफिनिटेसिमल। हम कैसे बोल सकते हैं 10 to 0 करते हैं? सो व्हाट बेसिस डू वी टेक 10 to 0? ऑन द बेसिस ऑफ हाउ लार्ज द न्यूमरेटर इज और क्वेश्चन के आधार? Like you want change in x to be as small as possible. As small as possible. It is something called, there's a word for accurate it. value. infinitesimally close. Yeah. Infinitely close, yes. Infinitesimally close. God. There is a Infinitesimal. word for it. Infinitesimal. मुझसे प्रोनाउंस ही नहीं होता है। Infinitesimal. Infinitesimal. Okay. I have a doubt. So Yeah. by this we can You conclude said that that if y x, delta x is tending One to guys. 0. Prishun. Yeah, Ishan. so you said that if x is like as small as possible, then even y will be like as small as possible, right? Y would be Not necessarily. Like not not as small necessary. as possible, but it will Not also be. necessary. Not necessary. X would be as small as possible. But Not if x necessarily, is no, as I small will as be the possible height and of the x is, curve. sir, It will if x depend is on the as relation. Visually, like ऐसा भी हो सकता है, let's say for example आपने यहां से यहां लिया, फाइन, तो इस केस में आपको y जो है इतना, देखो x इतना चेंज हुआ और y इतना चेंज हुआ, तो आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट जितना x है उतना ही y है। बट लेट्स से आपका ऐसा ग्राफ है ईशान, समथिंग लाइक दिस, लेट्स से ऐसा कुछ ग्राफ है, तो इस केस में आप देखो जरा, इवन अ माइन्यूट चेंज इन x Will result in a change in y. larger change in y. यहाँ पे ये Larger term change. कम है compared to this. So it will depend on function to function. You cannot generalize it कि सर हाँ delta x होगा. It will depend on function to function. sir, Yeah. in derivatives definition, if we assume delta x tends to 0, then won't the rate become infinite? Delta x tends to 0 does not mean delta x is 0. It's very close to 0, but not 0. Not Sir, 0. but then it will become very humongously large, right? So the value will be close to infinite. But delta y will have an impact. Now, beta, it's a ratio. What I've said you over here, focusing on this only. Why are you focusing on denominator only? There is a numerator also now. Mathematically, how can you focus only on the denominator and comment on the whole ratio? आदित्य, तुम सिर्फ एक रेशियो ले रहे हो और सिर्फ अपना पूरा लेजर फोकस लगा रहे हो किस पे? डिनोमिनेटर पे। भैया न्यूमरेटर भी है ऊपर, वो बोल रहा है हाँ मैं भी हूं, आई एम ऑल्सो देयर। हाउ कैन यू कमेंट ऑन द रेशियो का वैल्यू कि सर बहुत ह्यूमंगस होगा? क्योंकि वो डेफिनेशन में डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखता था, डेल्टा उसमें एक्स ये टेंड्स नहीं। टू 0 मींस denominator tends to 0. What about the numerator? Because numerator depends on the denominator ना, y is equal to f of है। डेल्टा एक्स चेंज होगा तो y बोलेगा मैं भी चेंज होऊंगा, ठीक है? तो वो रेशियो क्या होगा बेटा? वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है? यस सर। वही तो वो बोल रहे हैं ईशान कि जो दोनों का रेशियो है वो कांस्टेंट हो गया, आपने बोल दिया ठीक है, बट यदि वो चेंज हो रहा है तो क्या? तो मैंने यही बोला कि इस केस में हर बार चेंज हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना के उसका स्लोप निकाल लेंगे।
सर तो आप ये कह रहे हैं कि अगर एक वेरिएबल का वैल्यू छोटा सा चेंज होगा मतलब थोड़ा सा तो दूसरा भी चेंज होएगा, राइट? यस, अच्छा, ओके, थैंक यू। बिकॉज दे आर डिपेंडेंट. सर ओके, तो डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो को तो अल्टीमेटली डेल्टा वाई भी अप्रोच करेगा जीरो को ना. नो ना, डिपेंड करेगा ना. अब ग्राफ तू ये बोल रहा है, देखा नदीप, यू आर सेइंग लाइक दिस कि सर ग्राफ ऐसा है, लाइक दिस, डिक्रीजिंग टाइप का या फिर इंक्रीजिंग टाइप का. डेल्टा है क्योंकि देखना यहां से यहां ये चेंज हुआ. अब ये चेंज तो बोल रहा है जितना कम से कम हो उतना ही चेंज वाई में कम से कम होगा, है ना. तो ये वाला पॉइंट जो है, मैंने यही तो बोला आपको, मे बी ये हो और ये हो, बट दोनों का रेशियो तो कितना ह्यूज हो जाएगा. इट विल डिपेंड ऑन ग्राफ टू ग्राफ. ओके, दोनों का रेशियो देखो कितना आएगा, 2/5 आएगा, 0.4. 0.4 is very large compared to these two quantity, 0.0002 and 0.0004. I hope this point is clear. Any doubt in this? No, sir. No, sir. Okay. तो let me just erase this. या फिर ये रहने दूं, मैं साइड में कर दूं. चलो ठीक है. हाँ, now let's come to the next. What is the rate of change for this function? बताइए. पहली चीज बताइए, फंक्शन विजुअली कैसा दिख रहा है. लीनियर लीनियर के लिए हमने क्या सीखा था? 40 है सर. 40 हाँ, 40 है। 40. है ना. तो कैसे निकालेंगे विजुअली, बोलो. ये डेटा दिख रहा है सबको? डेल्टा वाई बाय डेल्टा 105 divided. कितना है Delta ये? y upon delta x. डेल्टा वाई बाय डेल्टा. 5/200. अच्छा सर, उधर कहाँ? 0/0. 40. तो y में चेंज निकालो. 200 कट गया 0 से, 40. तो 200 माइनस 0. x में चेंज निकालो, 5 माइनस 0. तो कितना होगा? सर 40. सर बट लीनियर है ना, तो हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा. हाँ, दैट इज द एडवांटेज ऑफ लीनियर. ठीक है. या सर सर बोलिए. नहीं सर, बस क्वेश्चन. चलिए, इसका आंसर सर -20. हाँ, -20. -20. -20. एक मिनट. तो कैसे निकाल लेंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए, बोलिए कितना आएगा? माइनस सर 10,0. इस पॉइंट के 0, कोऑर्डिनेट 0,300. 0,300. 0,300. अब 100 minus 300 300 minus 200 -200 amount 10. divided by 10. 10 minus 0. 10. So what will it come? minus 2 20. minus 20. 100 by 10, which is minus -20. So does this data correlate with the visual representation? यस. सर. ऐसा स्लाइड हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है. ओके, है ना. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? 196. 198. 198. एज पर यूनाइटेड नेशंस देयर आर अराउंड 195 प्लस जितने भी कंट्रीज हैं. उनमें से आपको पता करना, असाइनमेंट रहेगा, अभी मत करना वरना भाई चैट जीपीटी करके करने लग जाओ. करेक्ट है. बहुत सारे सेंट्रल बैंक क्या देते हैं? पॉजिटिव बैंक ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, बहुत सारे नेगेटिव देते हैं. हाँ सर एक मतलब तो मिनट उनके आप मूव पास कर सकते पैसे हो प्लीज? क्या देते हैं? नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब तुमने उसमें 10,000 रुपए जमा करे तो वो तुमसे और पैसे मांगेंगे कि इस 10,000 का 10% हमको दो, 1,000 रुपए और दो. हाँ. और कुछ सेंट्रल बैंक जो है वो पॉजिटिव देते हैं. वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमने 10,000 दिया तो मैं तुमको 11,000 लौटाऊंगा. हाँ गाइस, तो ये नोटेड, अंडरस्टूड दिस पार्ट Yes. कि नेगेटिव भी हो सकता है. रेट कुड बी नेगेटिव. नेक्स्ट, यू फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर फंक्शंस. यही डिस्कस किया हमने, है ना. इवन व्हेन अ Yes, sir. फंक्शन इज नॉन लीनियर, like in this case, we'll use our intuition about the slope to find the rate of the change. Next. Okay. ये तो लीनियर ही है. हाँ, बताओ इसका रेट.
Sir, to Five. sir, 30, 5. sir, 30,2. 15. 15. सर आया Sir, 15. So 5. No, wait, 5. Sir, 10. सर It's 5, it's 5, 48 it's और 5. ये वाला पॉइंट क्या सर है? 5 आया 5 0, 20 20. और फिर ये वाला पॉइंट तो यहाँ का ले रहे हो Sir, 4/40. यार क्या ही फर्क पड़ेगा? It's a 4 straight का line. 40 4,40. 4, 40. डेल्टा अच्छा वाई तो आपको कोई 40 डाउट माइनस हो रहा है कि सर यहाँ पे क्यों लिया? बेटा लीनियर है, कहीं पे भी ले लो। लीनियर है, कहीं पे भी ले सकते हैं। आप देखो ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे ऐसे ही बनेगी, इस पे टेंजेंट बनाओगे ऐसे ही बनेगी। लीनियर पे जहां पे टेंजेंट बनाओगे ना वो लाइन से ओवरलैप हो जाएगी। सर 5 है। तो कितना आएगा बोलो? 40 40 माइनस माइनस 20 अपॉन 4 माइनस 0 4 minus 0, which comes out as 5. what? 5. 20 by 4, which is 5. 5 okay. Sir, this is just Same without here, lines. 40 yeah. and Same 4 thing. 0. हाँ. Same, सेम ही है Yes, yes, same ही है. लाइन नहीं लाइन है। के बिना लाइन तो हम भी ड्रॉ कर सकते हैं. yeah. ये क्या है? अब इससे डर मत जाओ, ये वही फॉर्मूला लिख सर ली भाई तो सर ये पैराबोला है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो स्लोप का डेफिनेशन दिया हुआ है। ये क्या है? y2, ये वाई y1, ये क्या है? x2 x2, ये x1 अब इनको ए बी के टर्म में यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्यों लिखा? सॉरी, ये तो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्यों लिखा? 2y1 क्या है? रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है. लिखते हैं अरे तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही लिखा और है। हम इसको ऐसे और we already know FB function of B ए और minus बी का function of सिस्टम समझ ए और बी का नहीं आया, ये कैसे किया? बेटा फंक्शन है ये, देखो ना ये एक्स ये है, सर 2 कैसे आया? तो बी किधर है? बी यहाँ कहीं पे होगा, ग्राफ में कट गया है। सर 2 कहाँ से आया? 2 कहाँ से आया? इनकम्प्लीट क्वेश्चन है आई गेस, है ना? होना चाहिए पूरा, हाँ. इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, बस ये वाला ये भूल जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ. यहाँ पे ये समथिंग मिसिंग। सर एक ठीक है, सर आप पिछली स्लाइड में जा सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन करो जरा। सर जस्ट एक लेकिन वो जो वैल्यू आपने बोला मिसिंग है, ये वाला बेटा, दूसरा वाला नहीं, वो वाला मिसिंग नहीं है। ये क्लियर है? हाँ. यस सर, यस सर। अब ये क्वेश्चन करिए। हाँ वैसे मुझे डर है। और इसको y एक्सिस तो दिया है नहीं है। पता है नहीं है 1 कहाँ है कहाँ। function of x is equal to x square at -1 तो कैसे निकाल लेंगे इस पॉइंट पे? ये पॉइंट कहाँ है पहले ये बताओ, वेयर इज दिस पॉइंट? सर वो जहाँ पे आपने एक बनाया है ये वाला। हाँ. इस पॉइंट पे क्या करना है? ऐसा टेंजेंट बनाना है। तो इस पॉइंट को यू नीड टू मूव दिस पॉइंट क्लोजर टू हियर, लाइक ऐसा आना पड़ेगा, है ना? ये सिकेंड दिया है ना अभी। यस सर। तो इस पॉइंट को आप यू विल ब्रिंग एज क्लोज टू एज दिस, Yes. करेक्ट ना? हाँ. हाँ। और इस पूरे फंक्शन का ग्राफ आपको इक्वेशन दी हुई है ये। f of x is equal to x square। एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, ये इसी फंक्शन का ग्राफ है, लीनियर नॉन लीनियर फंक्शन का। आंसर क्या है? So we क्या have to है? find the slope between from -1 to 1 of x squared. अच्छा -1 नहीं, सी दिस इज द ग्राफ, okay? There are infinite tangent that you can draw. You can draw tangent here, you can tangent draw here, you can draw tangent here, Any you point we can tangent draw. here. तो secant दिया है, ये तो secant। Every tangent has a slope. Yes. You Yes. have been given a specific point, let's say this point, which is -1, 1. And you have been asked, tell me what is the value of slope at this point. That is the question. को 0.5 आ रहा है।
वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ यही टेस्ट कर रहे थे वो, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में विजुअल टूल नहीं है मेरे पास जो तो इसका आंसर -2 है। हाँ, आंसर इज -2। तो इसको डिफरेंशिएट करके -1 पुट करेंगे तो आएगा। हाँ आएगा, 2x करोगे, x का वैल्यू -1 तो डालोगे तो मैंने आएगा। मैंने तो ये वो किया, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर दिए का है ना। 2x किया मैंने, एक्स स्क्वायर हाँ, का 2x। हाँ बेटर इस क्वेश्चन में क्या है ना, मेरे पास एक विजुअल है जियोजेब्रा में बना हुआ, उसमें स्लाइडर बना हुआ है। उस हाँ स्लाइडर में क्या होगा, आपको सिर्फ ये टेस्ट करना है कि आपको इस पॉइंट को यहां शिफ्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली ये स्लाइडर से ये वाला लिंक्ड है। Sir, I did not understand how you got -2. सर सर फिर मैंने तो फॉर्मूला से किया, वो जो जस्ट होल्ड ना, आई डिफरेंशिएशन वाला एक्सप्लेन। फॉर्मूला रहता है। गाइस गिव मी अ मोमेंट, आई एक्सप्लेन ना। हाँ सर। Yeah guys, are you able to see the screen? Yes, sir. Yes. Okay, so in the exam now this slider is there. Can you see that? Yeah, this is the slider. यस सर। हाँ, सर so that ये is ऐसा ही missing, था that is बोर्ड missing in the पर। slide, and that's why these are the options. So what is the answer you got for first question? 15 नहीं रुको, 40 40। sir. 40 आया था। So the 40. 40. 40 sir, 40. हाँ, so this slider is missing that actually. So now you calculated इसका कितना आंसर आया था? 20 -20. -20 -20. है ना? Okay. So now here, what did you get? सर उसका कोएफिशिएंट इज द स्लोप। तो वही तो हम ढूंढ रहे हैं। 5 5 आया था ना? 5. हाँ हाँ, so here that's why the problem was over ना, वहां पे जो आ रहा था ना उसका आ रहा था, तो वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, तो रहेगा ना उसमें, तो फिर हो जाएगा। ओके, वो क्वेश्चन क्या है ना, इनकम्प्लीट है, उसमें स्लाइडर में है नहीं अभी, तो लीव दैट क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग। सर ये वाला सर लेकिन आप अगर समझा सकते हो क्या ये वाला? लेकिन अगर फिजिकल अगर कोई ये वाला क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन सर अगर स्क्रीन पेपर में तो सर तो स्लाइडर स्लाइडर होगा। जो है ना उसमें मिसिंग है, इसमें ना क्वेश्चन में बेसिकली यही स्किल टेस्ट कर रहा था आपको, कि जब स्लोप पूछा है तो आपको टेंजेंट का स्लोप पूछना है, तो जो स्लाइडर होगा ना उस क्वेश्चन में क्या होगा, स्लाइडर होगा, तो आपको क्या करना है, स्लाइडर को इसको ऐसे स्लाइड करके यहाँ पे लेके आना है, और वो स्लाइडर लिंक्ड है स्लोप से, तो स्लोप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस स्लाइडर को यहां से यहां ड्रैग करना है, और फिर जो भी यहाँ पे स्लोप का वैल्यू आएगा वो सिंपल पढ़ के बोल देना है। दैट इज व्हाट क्वेश्चन इज टेस्टिंग, और कुछ नहीं। सर पर अगर कोई फिजिकल एग्जाम हो तो सर उसमें तो स्लाइडर नहीं होगा ना। होगा ना, क्यों नहीं होगा? विदाउट दैट कैसे फिजिकल करेंगे? एग्जाम में नहीं होगा, फिजिकल एग्जाम में तो फिर आपको पॉइंट दिया जाएगा। ओके, तो अभी विदाउट द स्लाइडर कैसे करेंगे? फिर बेटा ये तुमको अभी पढ़ाया ही नहीं मैंने, वो बच्चों ने पढ़ लिया ना कि इसका हायर डेरिवेटिव का कैसे निकालते हैं। 2x 2x हाँ, वो x की पावर n n का into भी x आएगा is to तो n उससे minus निकाल 1। सकते हो। हाँ मैंने लॉस। पढ़ाया ही नहीं, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, है ना। x की पावर n का n इंटू x की पावर n -1 होता है, मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी, इसलिए मैं वो बता नहीं रहा हूँ। तो सर लीव दैट हमारे सर क्वेश्चन। एक मिनट एमबी सर में एक मिनट सर क्लास एक हुआ था मिनट उस सर। स्लाइड पर जाओ सर, एक देखो मिनट ये के लिए। स्लाइड ऐसा हो रहा है, देखो जरा, ये देखो स्लाइड किया मैंने, देखो जरा यहाँ से कहाँ लेके आ गया मैं, देखो जरा मैंने थोड़ा, ये -1 किस पर है, इस सीकेंड का है। फिर जब मैं इसको इस सीकेंड पे लेके आ गया तो कितना हो गया, -1। -1। अभी मैं इसको बिल्कुल वहां पे लेके आ जाऊं, जैसे ये पॉइंट बी है ना, तो इसको कहां पे लेके आना है मेरे को, पॉइंट ए पे लेके आना है ना। तो बस वही कंसेप्ट था कि आप जूम करते जाओ, जितना पास जाते जाओगे, कोई बच्चा पूछ रहा था ना, जितना पास जाते जाओगे उतना यू विल गेट व्हाट, मोर क्लोजर एंड मोर लाइक 5 टाइम जूम किया हुआ है। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनी है ना, ये वाली, ये बूंद जो दिख रही है, इसको कितने टाइम मैग्नीफाई किया हुआ है, हाउ मेनी टाइम, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। तो ये ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, हाँ 25 टाइम्स मैग्नीफाई किया हुआ है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे चेंज देखो, कि यू कैन सी दैट कि हाँ यहाँ पे थोड़ा ऐसा तो ये उठा टेंस टू जीरो हाँ, बोल तो सकते हैं। 10 to 0 जो इन्फिनिटेसिमल बोल रहा था ना, वो देखो यहाँ पे दिखाने का हाँ ट्राई किया हुआ है इन्फिनिटेसिमल हो विजुअली, गया ये। कि ऑलमोस्ट इक्वली वो करेक्ट। एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे वही किया हुआ है, अब इस पॉइंट को लेके बिल्कुल यहाँ नीचे आ गए, उस केस में स्लोप कितना हो गया, -2.0। सर एक मिनट आप ये रख सकते हो, एक मिनट। व्हाट इज शार्प पॉइंट? पॉइंट सर सर टेक्निकली शार्प पॉइंट हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली फाइन और एक्यूरेट।
बट वो एक कर्व, वो एक पैराबोला है, उसका हाँ एग्जैक्टली कभी भी नहीं निकलेगा। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स है। हाँ मतलब शार्प पॉइंट का मतलब आपका ये है कि इफ यू वांट टू गेट एट क्लोज टू एस दैट पॉइंट देन दैट्स ओके। हाँ, टेंडिंग टू जीरो वैसा एक पॉइंट हाँ जो बहुत if you क्लोज आ if सकता है, you बट एग्जैक्ट तो if आएगा you नहीं। हाँ mean ऑफ sharp कोर्स। point by whatever been seen mathematically then that's okay. But in mathematics the language needs to be uniform. यस, वी है ना? कैन If नॉट you अप्रोक्सीमेट because 0.2 एज आवर इन्फिनिटेसिमल। हमको सिर्फ एक हाँ बहुत ज्यादा छोटा नंबर मिलना चाहिए। उतना भी हो गया, बड़ा आगे नहीं। बढ़े, ये वाला पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट। अब ये जो बच्चा कोई पूछ रहा था लिमिट वाला, इसका मतलब यही है कि आप पॉइंट बी को ए के जितना नजदीक लेके जा सकते हो जाओ, और फिर डिफरेंस निकालो, और फिर उस डिफरेंस का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर्म्ड एज द वैल्यू ऑफ बी अप्रोचेस टू ए। सर अब एक बार आप समझा सकते क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? हो? सर ये डेरिवेटिव वाला जो आपने अभी समझा। विजुअली समझो, पहले विजुअली समझो। ये देखो, ये विजुअली समझाया मैंने। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्लू कलर की क्या दिख रही है? टेंजेंट। सॉरी टेंजेंट नहीं, सीकेंट। सीकेंट है। सीकेंट सर सीकेंट मतलब दिखा रहे सीकेंट है। सर सीकेंट। तो अभी आप इन ये जो रेड लाइन है दिख रही है, रेड वाली, इसको डिस्टेंस ऑफ छोटा करते जाओ। लेते इसको और छोटा करो, लेते इसको और छोटा सर करो, लेते इसको ओ, और तो छोटा ये सर स्लाइडर का प्रॉपर्टी है। सर अभी वो गौरिश ने बोला था ना कि वो शार्प पॉइंट पे क्यों नहीं करते। करो। का माइक नहीं चल रहा है, वो मुझे एक्सप्लेनेशन भेजा है, उसने कहा है वाई इज स्लोप नॉट डिफाइंड एट अ शार्प पॉइंट। हाँ, that is what I'm telling ना कि sharp point. What do you mean by the sharp point? Define sharp point. If you mean by the sharp point in the neighborhood of the इन्फिनिटेसिमल A, पॉइंट। so you are correct. इन्फिनिटेसिमल पॉइंट जो बहुत हाँ छोटा है, टेंडिंग टू जीरो वैसा। गाइस, चेंज होने के लिए आपको थोड़ा आगे आगे पीछे जाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा? क्योंकि आप वहां खड़े हाँ हो, जहीं पे खड़े हो, तो चेंज क्या होगा बोलो फिर? जीरो। यस, सो यू वोंट गेट जीरो। दैट। तो चेंज होने के लिए आपको तो थोड़ा तो मूव होना पड़ेगा ना, उस थोड़े को ही इन्फिनिटेसिमल बोल रहे हैं गाइस। हाँ, इतना तो सिंपल है। ओ गॉट इट? यस, ऑफ कोर्स, सिंपल। अब ये पॉइंट बी को आप नजदीक लेते जाओ टुवर्ड्स ए, और फिर ये क्या बन जाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। हाँ, जैसे हम बोलते हैं कि एटम टच नहीं करते हैं, वैसे ही बोल सकते हैं वो एक इन्फिनिटेसिमल पॉइंट पर होता है। हाँ हाँ सॉरी। बेसिकली आप देखोगे ना तो इसमें यही है कि प्रॉब्लम यही आ रही है कि स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई हमको ऐसा करना पड़ रहा है। अगर यूनिफॉर्म होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो। सर या सर वो एफ डैश ए को हम लोग डी ए बाई डी बी लिख सकते हैं। हाँ, है ना? यू कैन राइट हियर व्हाट? वो ज्यादा सिंपलर हो जाएगा। एफ प्राइम ए वो थोड़ा डीबी अजीब बाय हो। डी ए। डी ऑफ एफ, और क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्या है ये? ए, डी ऑफ, हाँ नहीं, एफ ऑफ ए। आई थिंक ए, डी ऑफ नहीं, एक्स, तो ए ए एक्स ए कहाँ से आया? इस जगह पर ए अच्छा ऐसा। ऐसा है फंक्शन। ना? हाँ नो एक्स सर, का डी वैल्यू ऑफ क्या है? डी एफ ऑफ ये एक्स अंदर बाई ही एक्स। रहेगा। यही तो सर है। बाई वाई नहीं होगा, With बाई the एक्स respect to होगा। x. हाँ ये बाय डी एक्स एक्स होगा, माय होगा। बैड, हाँ माय तो बैड। सर वो एक्स होगा सर। हाँ एक्स होगा, ठीक। डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स। चलो डी ए बाय डी एक्स। यस। ठीक है, तो हाँ ये मैथमेटिकली फॉर्मल डेफिनेशन है ना, कि ये जो चेंज होता है जितना कम करो और उनका रेशो ले लो तो आप उतना एक्यूरेट पहुंच जाओगे। फाइन, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और समझिए और बोलिए। प्रीवियस पेज एक बार। सर ये लिम्ब बी ये लिम्ब बी आ रहा है, मतलब बी को हम एक की तरफ खींच रहे हैं ना? करेक्ट, हम वी आर पुशिंग टुवर्ड्स बी टुवर्ड्स ए। या We are trying to find that accurate measurement of how much Yeah. you're pushing. as close to as a you can reach. Okay. Done, sir. Okay, So now is it this possible question, to guys, find the exact value, because this only gives an approximation? for which question you're asking?
I'm talking about this method. Is it possible to find the exact value because we're bringing it closer to A? So that will give Shouldn't be us an possible to find the approximation. exact value. एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं हो पाएगा ना। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हाँ आपको क्या चाहिए? चेंज चाहिए। जब चेंज 0 रहेगा तो आंसर 0 हो तो जाएगा बेटो। हाँ सर इसका आंसर सर जीरो इसका है आंसर है 0 सर इसका। सर, क्योंकि अगर कांस्टेंट का वहां पर स्लोप ही डेरिवेटिव तो निकालेंगे तो जीरो जीरो दिया गया है। ओ ठीक हाँ है। ऑफ कोर्स f(1) हाँ हाँ For which value of a the derivative of f dash a is -1? तो यहां पे स्लोप कितना है? 0। बट वो क्या पूछ रहे हैं? ये स्लोप है? नहीं अरे एफ डैश ए स्लोप था ना, अभी क्या पढ़ाया था यहाँ पे? व्हाट इज एफ वही डैश तो ए? स्लोप ही तो है वो। व्हाट ओ इज एफ डैश ए? हाँ शक f at x। ओ हाँ तो ये वो बोल रहा है ए की किस वैल्यू के लिए स्लोप का वैल्यू -1 होगा। अभी करो। ओ गॉड। सर ddx ऑफ -1 सर 0 है। 1 ही तो रहेगा। बेटा 1 पे, इस 1 पे टेंजेंट जो बन रही है उसका स्लोप 0 आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसी खड़ी हो गई है टेंजेंट, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप 0 है। वो स्लोप -1 मांग रहा है। जिसको समझ में आया है कंसेप्चुअली वही आंसर कर पाएगा ये। वो तो समझ गया। या सर एक मिनट रुक जाओ, अभी समझ गया। सर वो जो फॉर्मूला था प्रीवियस स्लाइड पे उसमें लिम का क्या मतलब था? लिम का मतलब ये है बेटा कि ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट, देखो यहाँ पे, ये देखो, इस वाले पॉइंट पे फोकस करो, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको पकड़ के मैं ग्राफ पे ऐसे लेके इसके पास लेना चाहता हूं, है ना। इसको ऐसा स्लाइड कर करके मैं इसके पास लेना चाहता हूं। तो देखो मैंने पहली बार किया तो मैं यहां पे आ गया, समझ में आया। दूसरी बार किया तो मैं एग्जैक्ट उस पे ही पहुंच गया। देखो यहां पे ये है ना, अभी ये पहुंचा नहीं हूं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ना बेटा कि मैं वहां पे पहुंच रहा हूं, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट दिस इन मैथमेटिकल लैंग्वेज? लिम बी टू लिम। अंडरस्टूड नाउ कि विजुअली क्या हो रहा है? देखो यहां पे मैं पहुंच ही गया। यस सर। नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग, विजुअल मीनिंग क्या है लिम का? भाई आप एक पॉइंट को पकड़ के जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे लेके जा रहे हो, उसके जितना नजदीक जा सकते हो वो, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिम। सर क्वेश्चन। हाँ सर वो डिस्टेंस है या फिर सिर्फ ऐसे ही प्रोसेस को कोई नाम दे दिया है? डिस्टेंस है मतलब? जितना वो पॉइंट डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो डिस्टेंस है लिम, या फिर सिर्फ जो प्रोसेस है उसको एक नाम दे दिया है? नहीं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस एक सर्टेन वैल्यू है। इसको और कम करो, तो ये भी एक सर्टेन वैल्यू है, और कम करो, ये और छोटा। और कम करो, तो ये डिस्टेंस कम होती जा रही ना। हाँ उस डिस्टेंस को आप जितना मिनिमम कर सकते हो उतना, दैट प्रोसेस लिम। यस सर। So, is the answer to this question 2? हाँ, हाँ how Yes, did sir, you even I'm arrive at the getting answer, to. ईशान? Yes, Sir, ईशान। because in this part, like, if you look at the function, between 0 to 1 it's increasing, वेरी and गुड। at 1 it's 0, and between 1 to 2 it's decreasing, then again it's 0 at 3, then it's again increasing, so it's only decreasing in 1 to 2. So matlab, I just took a guess like it should be 2 Yeah, because correct. Very good. You understood the concept. Very good. Guys, how many of you understood why Ishan said? Anyone? यस
We have to just समझा look at, sir, we just have to look at the, सर इंट्यूटिवली समझा या फिर हाँ मैथमेटिकली नहीं समझा? हमको जिस डायग्राम को देखकर समझना पड़ेगा and you have to check out the सर function. अगर बेसिकली वो बोल रहा है कि उसको 0 मिल गया, उसके लेफ्ट में से तो बढ़ रहा है, तो 0 से हमें कम का वैल्यू चाहिए, तो जो नेक्स्ट कम हाँ। वाला 0 मिल से गया। 1 के बीच में स्लोप पॉजिटिव है। हाँ Sir, we can also draw a straight line from 0 to 4. It will be the same. So इस करेक्ट है। प्रिंसिपल पर चल के यहाँ हम पे बोल आप कोई सकते हैं। भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे ऐसा आपको दिखेगा कि स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। हाँ करेक्ट है। सर यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। 0 यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो यहाँ सर तो पॉजिटिव, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पॉजिटिव। सिर्फ एक रीजन में नेगेटिव आ रहा है। कौन सा सर तो रीजन है 1 बोलो? to 2 पूरा रीजन होगा ना? हाँ, यहां से लेके यहां तक कि नहीं? तो उसने गैस लिया कि सर फॉर गिवन सेट ऑफ डेटा मेरे को तो 2 ही गिवन है, बाकी तो कोई पॉइंट गिवन नहीं है। आई टेक अ गेस 2 व्हिच इज अ करेक्ट आंसर। सर इंटुइटिवली समझ आ गया, बट मैथमेटिकली सर हम बोल भी सकते हैं ये 2.0001, 2.0001 ऐसे भी हो सकता है। It cannot always be positive. हाँ, बट एज पर गिवन डेटा Okay. कैलिब्रेशन में और कुछ गिवन है क्या? इज एनी वैल्यू गिवन नहीं, बिटवीन 2 and 3? हमारे कुछ नहीं दिया गया है, तो we कुछ have नहीं to गिवन work on है, our तो यू हैव टू intuition. टेक अ गेस, यू हैव टू No. हजार्ड अ गेस, Rational thing. यू हैव टू सर हजार्ड अ गेस। मैथमेटिकली समझाओगे सर एक बार? व्हिच वन? मैथमेटिकली कैलकुलेशन समझाओगे एक अरे बार? वही तो हम नहीं कर पाएंगे। We have to guess. हमारा उतना कुछ भी वैल्यू नहीं दिया गया है वैल्यू ना। नहीं दिया है ना बेटा। आपको क्या करना पड़ेगा? इस रीजन में आपको कमेंट करना पड़ेगा कि स्लोप क्या है। हाँ। सर And वैसे we have to check if the slope of the next one which is coming is positive along with the slope of the first one which we get. यहां से यहां तक स्लोप क्या है? आप टेंजेंट बना के देख लो किसी भी पॉइंट पे। 0 to 1 और 3 to 4 का स्लोप हैज टू बी सेम, पैरेलल ना। तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो ऐसा आएगा आप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहे थे, पॉजिटिव बनाएगा। इफ यू नो अबाउट थीटा वीटा, ट्रिगो का थोड़ा बहुत जिनको आता है, ये हाँ एक्यूट एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से यहाँ पे हर हाँ केस में, तो वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है तो 0। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा नेगेटिव, यहाँ पे अगेन एक्यूट बनेगा पॉजिटिव। इन समझा। अदर वर्ड्स ईशान ने जो रीजनिंग लगाई है वो क्या है? सुनो ध्यान से। वो बोल रहा है कि सर यहाँ पे वही रीजनिंग मैं बोल रहा हूं, मैं तुमको एंगल वेंगल बोल नहीं रहा हूं। उसने रीजनिंग क्या लगा ये सुनो। उसने बोला पहले यहाँ पे आप फंक्शन के बारे में कमेंट करो, बताओ कैसा फंक्शन है? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग 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 पॉजिटिव। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो स्लोप क्या होगा? इंक्रीजिंग। ऊपर जाएगा। पॉजिटिव। एवरीवन एग्रीज? यस। फाइन। इसमें कोई डाउट है वाले कंसेप्ट में? सर ये सर ध्यान रखना। सर एक मैथमेटिकल वाला एग्जांपल दिखाओगे? यही तो मैथमेटिकल कंसेप्ट है बेटा, अरे और क्या? नहीं ये सर, ग्राफ ही है। तुम इक्वेशन मांग रहे हो, इक्वेशन नहीं है मेरे पास, ये ग्राफ ही है सर फॉर्मूला को यूज करके जो आप अरे दे- यार, बेटा। ये तो रहा, ये लो, इतने हाँ सर सारे के पीछे ऐसा ही क्वेश्चन दो ना फॉर्मूला ये वाला। तो रहा ना, यही तो ये है। इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा यहाँ से यहाँ ये डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ ये इंक्रीजिंग है। हाँ तो हो ओके ही जाएगा। और क्वेश्चंस दोगे? हाँ, क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। अभी पहले कंसेप्ट तो पकड़ लो। उसमें हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एबल टू अंडरस्टैंड द, क्योंकि ये कंसेप्ट यूज होगा, उसने ईशान ने बोला है। क्या कंसेप्ट है? क्योंकि मैं जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे फिर तुम्हारे फर्रे नहीं उड़ने चाहिए कि सर ये कहां से आ गया। ये कंसेप्ट ध्यान रखो, उसने जो बोला है क्या? दैट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन स्लोप इज व्हाट? पॉजिटिव, ग्रेटर, पॉजिटिव एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन नेगेटिव। नेगेटिव। सिर्फ इस नॉलेज से आपको ये क्वेश्चन हो गया। हाँ ओके, एनी डाउट? नो नो That सर। is the learning from this question, that they want to teach you that for Sir, what's increasing the answer? function. Answer is 2 now. Here it is negative ना? यही तो पूछा है ये, ओ अच्छा यही तो ये okay. प्लॉट किया है। चलो देखो, ये बनाया भी है, ठीक है। हाँ सर। The tangents slope approximate the rate of change for the function at the point, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हाँ ये हैं, तो ठीक है। previous card। The derivative is the rate of change of the function at the point. Now we'll show how the derivatives are useful. चलो, now the first part is done guys.
है ना? लेट मी जस्ट, हाँ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन? द टेंजेंट इंटरसेक्ट एट द, हाँ चलिए ये क्वेश्चन करिएगा। इस सीकेंट सर दे ये रखा है, टैंजेंट टेंजेंट का की पूछा है, ध्यान सीकेंट रखना। ये वाला आंसर मत देना, वरना पता चले ये आंसर दे दिया पकड़ के सर आपने। कुछ ये रहेगा घुमाने वाला ना, क्या? स्लाइडर लगा हुआ है स्लोप। स्लाइडर ही रहेगा। What is the slope of the tangent line? The tangent intersect f of x at x equals to 1, 2. सर ये टेंजेंट मतलब हाँ एक कुछ स्लाइडर ही रहेगा। स्लाइडर रहेगा, सही बोल रहा, विदाउट स्लाइडर के नहीं होगा ये। नहीं होगा अभी शायद से। वन आंसर। ओके वन वन है सीधा, अभी यही आंसर है। वन ही है ना? हाँ हाँ, स्लाइडर वाला क्वेश्चन था बेसिकली। हाँ, ये सर क्वेश्चन एक बार वापस दिखा सकते हैं पीछे वाला? डेरिवेटिव ऑफ f x is equal to 2. डन। दोबारा दिखा सकते हो? यस। What is the derivative of the function when x is equals to 2? So you can't do this, right? You need a Yeah, you can do this. You I can, you think can. you have the values. Sir, 1 by You don't But you require. need the function, right? one, 1 by one. 2. The One. 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 How is it 1? हाँ अच्छी बनी रहना चाहिए सर सर, 1 जो है 1। फंक्शन Now वन it's का one. हुआ। सर very close to 1 or 1. तो वन ही है। सर क्योंकि वो वाई एक्सिस You को क्या, need what is the function, like you need to know what f of x. Visually, intuitively 1. Like you don't know the equation of the function, that's okay, but you can come look at the visual part and then answer. हाँ What is 1 तो हाँ 1 सर और -1। 1 है, इसका पॉइंट का विजुअली कोऑर्डिनेट देखा क्या तो होगा? बढ़ जाए। 1, yeah, okay. 0. इसका 2, 2,1। 2,1 now you can find out. एक मैं गलत पॉइंट माइनस 1 minus 0, 2 minus 1. 1. 1 1 by 1 1. Yeah. It's been given 1, na? Sir, can you go to the previous slide once? Done? यस Yes, sir. सर Find the कैन यू गो टू द derivative is प्रीवियस equal स्लाइड फॉर to 1 मिनट? 1. Choose A that makes f dot A equals to 1. Again slider वाला question है, repeat. What is the derivative of at x equals to A? हाँ, this can be done, guys. 0. सर 0। 0. 0? Zero, sir. 0 0 Zero, sir. तो स्लोप Flat 0 line भी है ना? नहीं होगा। It's zero, हाँ? sir. It's It's a zero. flat line. It's a straight line. हाँ, the straight line. Parallel to इधर x-axis. सर parallel to थोड़ा x. Actually, zero. अप्रोक्सीमेटली 0 सर Parallel थोड़ा to सा x, sir, zero. डिफाइन हो Let's रहा say है। this point is, let's say 1 point something. Let's say 1.2. So what would be the coordinate of this point? 0, 1 point. A, A, 1 point. comma. 1.2. 1,2 What would be the coordinate of this point? 0, 0, 1.2. 0,1.2 1.2 minus तो क्या हो 1.2 जाएगा? आपको 0 मिल जाएगा। 1.2 minus 1.2 Delta y divided 0 by minus 0. So which is 0 anything upon A, upon which is 0. 0 upon anything is 0. Okay? सर लेकिन लाइन तो सीधा ही है, 0 ही रहेगा। बेटा मैंने वो फॉर्मूले से भी दिखा दिया। नेक्स्ट, सर अगर परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होगा? 90 degree. हाँ वो भी 0, Tan सॉरी। slope. नहीं, Find the derivative is equals to 1. Choose A that makes f dash equals to 1. ये तो कर दिया ना हमने, हाँ ठीक है? हाँ हाँ, चलो ये वाला पार्ट हो गया है अभी, है ना? This part is done. yeah Okay? Now, integral हाँ ये तो कोई सेम चीज है, ये वाले हो गए ना हमारे सब। हमने ये किया था, Same ही कैसे question आंसर आया था। ये स्लाइड रिपीट है बेटा, डोंट वरी। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सर ये रेट ऑफ चेंज से डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन से भी कर सकते हैं ना, मतलब अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो। हाँ, नाउ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स। okay ओके, फाइंडिंग डेरिवेटिव्स। ओके, नाउ कांस्टेंट मल्टीपल्स, सबसे पहले ये कवर करेंगे। लेट्स से आपके पास 2 वाटर बॉटल्स हैं, है ना? दोनों क्या है, स्टार्ट में एम्प्टी है, खाली है। मतलब ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये है नहीं, ये भरा नहीं है अभी।
है ना? देन दे गेट्स फिल्ड एट डिफरेंट रेट्स। मतलब सपोज करो यहाँ टैप से ना जो वाटर पोर हो रहा है लेट्स से 1 लीटर हो रहा है पर मिनट में, है ना? और यहाँ से जो वाटर पोर हो रहा है लेट्स से 10 लीटर पर मिनट है, तो दोनों का रेट अलग अलग है। इतना क्लियर? वो रेट अभी आगे क्या है वो देखिएगा। दिस थिंग इज क्लियर ना? वी हैव 2 empty bottles, देयर इज अ 2 tip pouring बॉटल में पानी भर रहा है और दोनों का रेट अलग अलग है। नेक्स्ट, let's consider 2 bottles, start empty, then get filled at different rates. At any given point, one bottle has twice the amount of the water as the other. तो मतलब आप कोई भी टाइम ले लो, लेट्स से आपने पूरा टाइमर कितने बजे स्टार्ट किया, लेट्स से 12 बजे स्टार्ट किया, 1 बजे स्टार्ट किया, कितने भी बजे स्टार्ट यार किया, कोई डजंट। दूसरा कलर लो ना, दिख नहीं रहा। दूसरा कलर लो, रेड दो, लो। लाइट ग्रीन बहुत अंधा, सॉरी। रेड इज विजिबल? यस। हाँ, तो लेट्स से आपने घड़ी के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कितने बजे भी स्टार्ट किया, उस टाइम पे क्या था, दोनों टाइम पे क्या था, वो उस टाइम पे दोनों वाटर बॉटल एम्प्टी थे। फाइन, लेट्स से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से एट पर्टिकुलर 0 लेट्स से 5 सेकंड पे आपने चेक किया, ठीक है? उतने 5 सेकंड में इसमें लेट्स से x है, तो इसमें कितना होगा? 2x। दैट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। At any given time, one bottle has twice the amount of the water as the other. इतना क्लियर? हाँ। Is this thing clear? यस सर तो अगर मतलब now let's call W1 the amount of water in the first bottle and at the time t, जो मैंने क्या माना था इस केस में, x माना था, उसको अब वो क्या मान रहे हैं, W1t, some function of time. फाइन। सिमिलरली मैंने जो 2x माना था उसको क्या मान रहे हैं वो, W1t, again some function of time, the amount of water in the WT. और मैंने आपको क्या बोला था कि जो WT है ना, वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? हाउ मच? ट्वाइस। आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जल्दी से बताओ 2 पे W1 का वैल्यू कितना है? 1। 2 पे W2 का वैल्यू कितना है? 2। क्या 2 1 का डबल है? यस। अब लेट्स से 4 पे निकालो, 4 पे W1 का वैल्यू बोलो कितना है? 4। ना ये 1 और ये 2। 4 पे W2 का वैल्यू कितना है? 4 है ना, y का तो 4 है। 4। सो इज 4 डबल ऑफ 2? तो ये आपको विजुअली भी दिख रहा है और उसने जो वर्बली बोला वो भी हो गया। इज दिस थिंग सर आप क्लियर? और एक बार समझा सकते हो? देखो सिंपल सा फंडा है, वो ये बोल रहा है बेटा 2 वाटर बॉटल ले लो एम्प्टी वाली, दोनों में ऐसा पानी से नल से खोल के पानी डालो, ठीक है? अब वो बोल रहा है ये जो टैप है A और ये जो टैप B, हाँ। ठीक है, किसी भी टाइम पे आपको चेक करना है बॉटल में कितना पानी गया। अभी रेट की बात नहीं हो रही है, किस बात की बात हो रही है कि कितना पानी किसी भी टाइम पे कितना है। तो वो बोल रहा है लेट्स से जितना भी टाइम पे आपने किया, तो उस टाइम पे इसमें जितना वाटर होगा उसका जस्ट डबल यहाँ पे होगा। ओके। ये उसने बोला। हाँ। अब उसने बोला लेट्स रिप्रेजेंट दैट विथ अ ग्राफ। उसने बोला इसको W1t मान लो, इसको WT2 मान लो, और फिर उसने दोनों को ऐसे प्लॉट कर दिया, एक रैंडम ऐसा ले लिया। और आप कोई भी पॉइंट ले लो, यू टेक एनी पॉइंट, हर केस में आपको डबल मिलेगा। हाँ ओके। दैट इज व्हाट ये उसने विजुअली बोला है, ये विजुअली दिखा रहा है वो, और यहां उसने लैंग्वेज वाइज बोला है। ओके, अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस। ओके, नाउ लेट अस कम नाउ हाउ दीज टू फंक्शंस आर रिलेटेड। ये तो मैंने खुद ही आंसर कर दिया, बोलो क्या आएगा? W2 equals to 2W1t। एवरीवन एग्रीज कि सर हाँ ये दूसरा वाला फंक्शन है, वो सारी वैल्यूज के लिए डबल होगा फॉर W1। सो दिस इज द आंसर। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। तो ये W1 और W2 क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर। अभी रेट की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉटल। नेक्स्ट, नाउ वी हैव W2 ट्वाइस ऑफ W1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अब इनकी रेट बताओ। हाउ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दीज टू फंक्शंस आर रिलेटेड? सर 2W1। That's the third option. W2t। third option थर्ड होना चाहिए। is equal to W2 of t is equal to बस डैश डाल दो दोनों में, हो गया काम। सॉरी बस डैश ही डाला है।
और कुछ हाँ किया। तो ये डेरिवेटिव है ना बेटा, यस वो ये सर। बोल रहा है कि ये टू का डेरिवेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है, टू बाहर आ जाता है। तभी तो ये सिखा है ना कांस्टेंट मल्टीपल्स, हाँ कि जब कांस्टेंट का मल्टीपल होगा तो वो डेरिवेटिव में बाहर आ जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाट दे आर टीचिंग। या ओके, फर्स्ट वी रिलेट फंक्शन, पहले हमने फंक्शन को रिलेट किया, एक बार हमको ये मिल गया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डब्ल्यू डैश, W2 dash ये बाहर रहेगा, एज इट इज रहेगा, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, W dash W1 dash। That is what the learning. So from these two facts, we can conclude that the derivative of 2W1 is 2W1 dash t. ठीक है, तो in general, what would be the derivative of f or k into f of ax? बोलो सर K F dash K dash K dash K dash K K F dash K into A Sir, K dash times f prime of x. है ना। अब यहाँ पे आप लोगों ने नहीं पूछा, बट पूछना चाहिए था आपको, क्या कि अगर के ऐसा क्यों होता है? वेरिएबल है तो क्या होगा? कि k कांस्टेंट है कि नहीं, k f का फंक्शन तो नहीं है। सर K हाँ सर K तो हाँ, तो constant ही K तो सर कांस्टेंट को K मल्टीपल constant होगा ना होता सर, है जैसे ना, K is a जैसे constant. सर जैसे सर 2 है सर। but it should be mentioned that k does not depend on x. हाँ Okay, any doubt? no That No, is what sir. the learning. अब देखो इनने क्या बोला है, a way to write this is this, dy by 2, तो ये 2 as it is रहेगा गाइस, और इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऐसा डैश करके लिख दोगे आप। ओके फाइन, मींस दैट टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द t whatever is inside the bracket. ओके नेक्स्ट, ये लिख दिया है, तो इसको ही बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ये यूज होगा क्वेश्चन में बार बार। डी बाई डी टी ऑफ टी इन एफ टी वेयर सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, सी विल कम आउटसाइड, है ना, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इसको क्या लिखोगे, एफ डैश टी। एनी डाउट इन दिस कांस्टेंट रूल? सर एक मिनट सर। अभी हम क्या कर रहे हैं, रूल बिल्ड कर रहे हैं। अभी हम बहुत सारे रूल बिल्ड कर रहे हैं, फिर हम उन रूल्स को अप्लाई करेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देके, मैं चाहता तो सीधे क्वेश्चन देके सॉल्व करना स्टार्ट कर देता, आपको फिर मजा नहीं आएगा, आपको बोलेगा सर ये क्यों, ये ऐसा क्यों, नहीं। फर्स्ट आई एम बिल्डिंग द रूल्स स्टेप बाय स्टेप, वंस ऑल द रूल्स आर क्लियर देन यू विल अंडरस्टैंड ओके डेरिवेटिव ऑफ दिस, फिर आप मन से खुद फंक्शन बना के उनका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, फिर आपको किसी वर्कबुक की नीड नहीं पड़ेगी, यू कैन क्रिएट योर फंक्शन इन योर ओन माइंड and find its derivative. सर वो जो हमने पहले एक रूल किया था कि W1 इज इक्वल टू 2W2, तो सर वो यूनिवर्सल है या फिर सिर्फ ये क्वेश्चन में ही हमको वो मिला है? ये क्वेश्चन में बेटा, ये क्वेश्चन में राइज भी हो सकता था, फोर्थ भी हो सकता था, एनीथिंग कुड बी सर यहाँ पॉसिबल। पे सर C कांस्टेंट मल्टीपल है ना? हाँ, C is constant multiple, it could be any real number, like he is asking ना, कि यहाँ पे 2 की जगह कुछ और भी हो सकता था, इट कुड बी एनी रियल नंबर, थ्राइस हो सकता था, 1/3 हो सकता था, पाई हो सकता था, √2 हो सकता था, इट कुड बी एनीथिंग, एनी रियल नंबर। E भी हो सकता है। हाँ E हाँ, ई भी हो सकता है। और यार रोएगा वरना कि मेरे को क्यों छोड़ दिया। सर आप ये कांस्टेंट मल्टीपल्स वापस बता सकते हो क्या? कौन सा कांस्टेंट मल्टीपल बेटा? मतलब इसका कॉन्सेप्ट वापस बता सकते हो क्या? समझ नहीं आया मुझे। देखो कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हु विल एक्सप्लेन? तो मैं बोलूं, मैं बताऊं? तो मैं देखो प्लीज कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है गाइस, क्या 2 वाटर बॉटल है, 2 पैरामीटर है, एक तो इनमें कितना वाटर है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W1 और T, और किसी भी टाइम पे इनमें कितना पानी है इन फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। यस फिर इनमें जो रेट, किस रेट से पानी आ रहा है, कि 2 लीटर 1 मिनट में आ रहा है कि 3 लीटर 1 मिनट में आ रहा है, उसको क्या बोलोगे, रेट। तो W1 का रेट क्या होगा, W1/T बाय T, W1 डैश T, यही तो पढ़ाया था यहाँ पे, अभी पूरा रिलेटेड है ना एफ डैश टी, ये भूल गए इतनी जल्दी, यहाँ पे एफ डैश पढ़ाया था ना, देखो जरा
कितना बार पीछे जाना पड़ेगा? यहीं से तो खत्म किया था बेटा कि डेरिवेटिव को एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये क्या है, हर जगह ए आ रहा है। देखो ये देखो हाँ एफ हाँ डैश आ रहा ही नहीं, आ रहा है ये डैश। हाँ तो फिर कंफ्यूज नहीं होने का उसमें, ठीक है। लेट अस गेट बैक बैक टू देयर। तो मैं क्या लिखूंगा उसको, W1 डैश टी, डैश ठीक है। और यस यहाँ पे W2 डैश टी, ये रेट है जिस रेट से इसमें पानी पोर हो रहा है, ठीक है। ओके नाउ व्हाट इज यहाँ बीन पे गिवन रिस्टार्ट क्या वर्बली, लिखा है? नीचे क्या लिखा हुआ है बोलो। At any कि given time, one ट्वाइस bottle has twice the amount of water as the other. तो बस ये रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन वर्ड्स में दिया हुआ है, शब्दों में। आपका क्वेश्चन ये था कि सर ये ट्वाइस ही क्यों है, और कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है बेटा, आपको जो लेना है ले लो, √2 3 वॉट एवर यू वांट टू टेक, टेक इट, नो प्रॉब्लम। सर हाँ रिस्टार्ट है वहाँ पे, क्या रिस्टार्ट रीस्टार्ट मतलब? लिखा है वहाँ पे स्लाइड पे। नहीं बेटा वो, स्नैपशॉट है शायद। हाँ नाउ आपको W1 और W2 को विजुअली दिखाया गया है, ठीक है। और फिर पूछा गया है बताओ W1 और W2 के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये W2 इज टॉइस ऑफ W1 फॉर ऑल द पॉइंट्स, उसने वर्बली भी वो बोला था। तो ये किसके बीच में रिलेशन हो गया? इसके बीच में। नाउ इट्स आस्किंग कि रेट के बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो क्या किया हमने, व्हाट वी डिड, वी सिंपली डिफरेंशिएटेड, है ना। ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस दैट इज व्हाट द लर्निंग, ये लर्निंग था यहाँ पे, है ना, जो इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके अंडरस्टूड? यस ओके सर ये dy नाउ बाय dx ही है, बस उस पूरे को मल्टीप्लाई कर दे कांस्टेंट मल्टीपल से। क्या बेटा? सर ये dy बाय dx ही है, लेकिन इसको पूरा कांस्टेंट मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दिया। dy/dt है, x तो नहीं है। मतलब वो भी, मतलब वेरिएबल जो भी लेना वही है, बट वही आज पूरा सिर्फ कांस्टेंट मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ करेक्ट। लर्निंग क्लियर है? ओके यस नाउ लेट अस टेस्ट दिस लर्निंग। चलो बताओ, क्विक क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। बोलो क्या आएगा आंसर? सर पहले का सर थोड़ा सा उसको जूम कर दोगे? जूम होता है क्या बेटा यहाँ से? कैसे ऐसे सर होता है थर्ड क्या? ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। जूम कैसे होता है, यहाँ से होता है क्या जूम? सर वो जो आपका टूल बार है उसमें फर्स्ट Sir, you ऑप्शन can जाओ, click on the वो जो पहला ऑप्शन है ना आपके वाइट टूल बार में, उस पे जाओ। वो वाला माउस चीज और उसको ट्राई कर अभी पिंच ये वाला? नहीं 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 नहीं, राइट साइड, राइट राइट साइड, राइट पेन के सेंट्रल टूल लेफ्ट बार, में है। हाँ उसमें से पहला वाला जो माउस ये है, हाँ हाँ सर, इसको इससे अभी पूरे अभी इमेज जूम को करवा सिलेक्ट करो। इसको पूरा सेलेक्ट करूं? अब बस हाँ इंक्रीज कर दो एंड और देन साइज। इसको अभी भी बड़े बना सकते हो सर। एक अरे सेकंड, अरे यार सर अभी ट्राई आइडिया करो। ये लो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ट्राई करो सर यार। इट्स अ प्रीमेड पीपीटी। सर। आंसर आई थिंक आ गया, आंसर थर्ड वाला है क्या? थर्ड वाला क्यों नहीं, हाँ उसको एफ मुझे भी प्राइम थर्ड एट वाला टी लग इज रहा इक्वल टू 80 स्क्वायर। है। या इट्स द थर्ड वन, इट्स द थर्ड वन। नहीं हो रहा है बेटा ये जूम? सर दिख तो रहा है हम लोग का थर्ड वन। दिख रहा है बट ठीक है। हाँ अभी आंसर थर्ड वाला है। सर क्या दोनों करना है? साइड 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। ये फंक्शन का रिलेशन गिवन है, तो सबसे पहले बताओ क्या होगा, s डैश t सर 4 टाइम्स ऑफ 4h dash h t dash t, 4h डैश, h डैश t। बट वो h डैश 2t t कितना और h है? dash t 2t करके हो स्क्वायर। जाएगा, तो हो जाएगा 4 into 2t 2t square, स्क्वायर, which is, तो 8t 8t स्क्वायर। स्क्वायर। and that has been asked, या ऐसा okay? हम्म हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, या जूम करूं? So is it 9? या करेक्ट। अरे 1 सेकंड 9 हाँ हाँ एक 9 यस सर okay. 9 Everybody get, The did 3 everybody is get 9? 9. यस सर। यस Thermal सर। 1 सर is एक दैट्स मिनट रुक 1 इज जाओ इक्वल टू 9। सर, एक मिनट। 3 f of x और RHS में भी 3 है, तो 1 1 एंड देन
तो 3 आ जाएगा। हाँ, तो G dash सर 9 X आया। is 9 3 आया। 3F dash X. F dash X में अभी आपको क्या रखना है? G dash of 1 इमरान की है क्या? is 3 times of F dash 1. 3F F dash dash of 1 1. आपको 3 पता है, so 3 into 3 which is 9 Nah. so okay. Back you. Next, we have seen that the multiplying a function by a constant does to its derivative. Now we'll explore what happens when we Add add function. the function. तो अभी टोटल 4 रूल्स और बाकी हैं, है ना? कौन सा रूल हुआ? ये कांस्टेंट मल्टीपल वाला, फिर एडिशन वाला आएगा, फिर प्रोडक्ट रूल आएगा, फिर कांस्टेंट चेन रूल आएगा, फिर कोशेंट रूल आएगा। Quotient rule. हाँ, फिर ये सारे रूल हो जाएंगे ना, देन वी विल जंप टू फाइंडिंग डेरिवेटिव्स, क्योंकि इन रूल्स के बिना डेरिवेटिव फाइंड करना वुड बी नहीं। तो अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ आपको कांस्टेंट का मल्टीपल कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो सिखाया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं सिखाया। ओके ठीक सर, है? ये एक्सेलरेटेड बैच का जो टेस्ट होगा उसमें ये चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे? आएंगे बेटा, इसी टाइप के आएंगे। अभी फटाफट ये 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, अभी भी 3 मिनट हो जाएंगे, फटाफट जल्दी से Okay, आंसर बताओ, फटाफट जल्दी से। Second one. सेकंड the second one 7 बाहर आ वाला। जाएगा, सर this one सेकंड बाहर वाला आएगा, सेकंड अंदर वाला। बाहर आएगा, चलो अंदर का और इधर दूसरा आ सेकंड जाएगा वाला। फिर वो हो जाएगा। हाँ सर हाँ, सर जल्दी से फटक से 20 the 20 20 yeah. इसमें इसको रखोगे First तो option 5 into G dash T which is 40, तो 20 will give 20 चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, जल्दी से। थर्ड 24 इसको यहाँ रखोगे डेरिवेटिव करके तो 24 24। ठीक है, ये और बचा, ये लास्ट है। चलो हाँ, अब ये सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, फर्स्ट आई थिंक। सेकंड डेरिवेटिव। ओह सॉरी सेकंड सर ए ऑप्शन थर्ड ये होना चाहिए सेकंड है तो यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है तो यहाँ सेकंड है, बट यहाँ 9 है, ये नहीं चलेगा। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड नीचे वाला। हाँ सर ऊपर ठीक है? सर फर्स्ट वाले ऑप्शन में रॉन्ग क्या था? फर्स्ट में यहाँ पे 2 बार किया है, यहाँ पे 1 बार दोनों किया का है। सेकंड डेरिवेटिव होगा ना, तो दोनों का दोनों में second 2 होगा। डैश। हाँ So can you go on the previous question? होमवर्क बेटा आज तो जो मैंने पढ़ाया है वो रिवीजन करके आओ, दैट्स इट, दैट्स द Yes, sir. होमवर्क।